نے ٹھیک نے بات ادا استاد دے تھوڑے خراب ہوئے آج پھر چیل بڑی آ رہی بناؤ تو نظر کوئی نیوے چیل ہی نظر آ رکھے نا یہ چیلا کی تعلق ہے میں کہ چیلا تو ڈرتے گئے تو نہیں ڈرتے ادو پتا کی ہوں یہاں کا دوجا رشتہ دار آ جائے لگن ہی ٹکل دے دیا چیلا السلام علیکم ناظرین، میں کامران عباس، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ منتھلی ہائی فلائنگ پیجن میگزین کے سیگمنٹ اڑان ہے پہچان میں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم لائیو ہوں گے ایک انتہائی اہم چھت سے، لاہور کی ایک انتہائی سینئر استاد کی یہ چھت، انتہائی سینئر شخصیت اور بڑی ہی پرفارمنسز ان کی چھت سے، اور بڑا ہی زبردست ان کا شوق، بڑا ہی وسیع پیمانے پر شوق کرتے ہیں اور بڑا سوبر اور بڑا ہی اچھا شوق کرتے ہیں، معیاری شوق۔ اگر ہم بات کریں لاہور کے ان اساتذہ کرام کے جن کا ہم سینئرٹی میں نام لیتے ہیں، تو اگر میں کہوں کہ یہ بھی ان اساتذہ میں سے ہی ایک ہیں تو یہ بالکل بھی مبالغہ آرائی یا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا تعلق اس وقت سے کبوتر پروری سے ہے کہ جس وقت میں لاہور کے بڑے بڑے اساتذہ جن کے نام اس وقت ہم سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے لاہور کی پہچان ہے، تو ان کے ساتھ جڑا ہوا نام ہے۔ بڑے ہی نفیس انسان ہیں، بہت زبردست شوق کرتے ہیں، خصوصی طور پہ کبوتروں کی پرکھ کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا تعلق کبوتر پروری سے، تو ہم صرف اگر کبوتر پروری کی بھی بات کریں تو کبوتروں کی پرکھ کے حوالے سے، کبوتروں کی اڑان کے حوالے سے، کبوتروں کو کی سنبھال کے حوالے سے اور کبوتروں کی بریڈنگ کے حوالے سے ہر حساب سے ایک جامعہ اور مکمل شخصیت ہمارے ساتھ ہے۔ اور سونے پہ سہاگا کے اس وقت ان کے بھی ساتھ ایک اور شخصیت جو ہمارے ساتھ ہیں، وہ لاہور کی کریم، جو اس وقت کبوتر پروری کی جو کریم کہلاتی ہے، جو ٹاپ لسٹڈ جو اساتذہ کرام ہیں ان میں سے ایک ہے۔ ہم موجود ہیں اس وقت استاد میاں ندیم وکیلوں والی ان کی چھت پر، وکیلوں والی چھت پر، اور ہمارے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں استاد زیڈ خان صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ میاں ندیم صاحب کے بھائی جو ہیں استاد میاں نوید صاحب، یہ دونوں بھائی اور استاد زیڈ خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ہم یہاں پر آپ کو استاد میاں ندیم وکیلوں والے جو ہیں ان کی چھت سے کچھ شوق کروائیں گے، کچھ پرندوں کا، کچھ گفتگو ہوگی، کچھ باتیں ہم کریں گے ٹیکنیکل ایشوز پر جو آج کل ہمارے جو نئے کبوتر پرور حضرات ہیں ان کو بریڈنگ کے حوالے سے جو مسائل آ رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور بات کریں گے جناب استاد زیڈ خان صاحب سے کچھ جو ہمارے لوگوں کو مسائل آتے ہیں اڑان کے حوالے سے، اس کو سمجھنے کی سوچ بوجھ کے حوالے سے، اس پر ہم بات کریں گے استاد زیڈ خان صاحب سے۔ اس جامع گفتگو میں جو ہمارا لب لباب اینڈ پر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اچھا کبوتر کس طرح بنایا جاتا ہے اور اس کو کس طرح سے پرواز تک پہنچایا جاتا ہے۔ بڑے ہی زبردست قسم کا آج کا ہمارا انٹرویو ہوگا۔ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، اور جو لوگ آگے مزید آئیں گے تو ان سے بھی گزارش ہے کہ اس کو شیئر کرتے جائیں تاکہ آپ لوگ ان دونوں استادوں کی ان باتوں کو جو آج ہونے جا رہی ہیں ان باتوں سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو استاد میاں ندیم وکیلوں والے کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی یہ چھت جو ہے 8 سے 10 سال پرانی چھت ہے۔ اس سے پہلے یہ راج گڑھ سے سٹارٹ ہوئے اور اس کے بعد ایک جگہ اور آپ نے چھت بنائی تھی، وہ کیا جگہ تھی؟ ٹاؤن شپ میں انہوں نے شوق کیا، اس کے بعد یہ فائنلی جو ہے اس چھت پر آ گئے۔ یہ ان کی رہائش گاہ کے اوپر ہی چھت ہے۔ جبکہ استاد زیڈ خان صاحب کے بارے میں اگر بات کریں تو ان کی کسی وقت میں جلوں کے پاس چھت ہوتی تھی اور وہاں پر انہوں نے بڑے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ آج بھی ان کے بھائی اسی سائٹ پر شوق کر رہے ہیں اور اس وقت لاہور کی ٹاپ لسٹڈ چھتوں میں وہ چھت بھی آتی ہے جہاں پر ان کے بھائی استاد وقار خان شوق کرتے ہیں۔ ہاں جی، جیٹ چیمپئن بھی وہاں سے رہے ہیں جلو والی چھت سے۔ اس کے بعد استاد زیڈ خان صاحب نے چھت شہر کے اندر بنائی، وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ اس وقت شہر کا سینٹر ہی وہ کہلاتا ہے علاقہ جہاں پر چھت ہے۔ ٹریفک کے حوالے سے دیکھا جائے، آبادی کے حوالے سے دیکھا جائے، آلودگی کے حوالے سے دیکھا جائے، ہر حساب سے وہ ایک کرٹیکل سچویشن اور کرٹیکل جو ہے لوکیشن تھی۔ اس کے باوجود اس چھت سے انہوں نے بے پناہ اچھی کارکردگی دیتے ہوئے ایک دفعہ تو بلکہ جو 2020 کے اگر ہم ذکر کریں تو ایک دفعہ
छाप लग गई थी मुकम्मल तौर पे कि इस दफा की अगर चैंपियनशिप है तो वो ज़ेड खान के नाम ही है। और लास्ट में जो बारिश हुई तो चौथी परवाज पर, जिसकी वजह से वो एकदम से जो है इनको बहुत बड़ी हिट हुई और ये नीचे आ गए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने फिर से अपने आप को संभाला और फिर भी दूसरे नंबर को इन्होंने किसी सूरत भी जाने नहीं दिया और अपने हाथ में रखा। जहां तक 1-to-1 मुकाबलों की अगर बात करें तो उस वक्त में भी इनके 1-to-1 मुकाबले खातिर खा छतों से थे और अच्छी छतों से थे, और वो मुकाबले जाहिर बात है कि अगर वो एक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ एक शख्स दूसरे नंबर पे लाहौर में आ रहा है तो जाहिर बात है कि बाजियों में भी उसकी परसेंटेज अच्छी ही होगी। और अगर बात की जाए उस्ताद मियां नदीम वकीलों वाले की, तो ये खुद भी अपने 1-to-1 मुकाबले जो है उसमें बड़ा अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं। 1-to-1 मुकाबलों से मुराद सिर्फ इनके थड़े की बाजियां ही नहीं है, हमारे यहाँ 2 तरह के लाहौर में बाजियां होती है, एक दफ की जो बाजियां होती हैं, एक वो, और एक थड़े की बाजी। उन दोनों बाजियों में ही इनकी हमेशा एक अच्छी कारकर्दगी रही है और 70% से अबव का ही रिजल्ट गया है, चाहे ये मसरूफ हो चाहे ये मसरूफ ना हो, इन्होंने हमेशा एक अच्छा रिजल्ट दिया। उसकी सबसे मेन वजह इनका एक्सपीरियंस और इनके मेयारी कबूतर है। इस वक्त जो एक चीज देखने में मिल रही है, जो सुनने में आ रही है, वो ये है कि उस्ताद ज़ेड खान साहब ने वो छत जो है खत्म कर दी है और अब ये दोनों लोग जो हैं मिल के इस छत से शौक करेंगे और अब देखते हैं इस साल की क्या परफॉर्मेंस आती है। जहां तक मुझे लगता है तो ये जाफरान और कस्तूरी का मिलाप हो रहा है, ये अल्लाह खैर ही करे। इस दफा बहुत ही जबरदस्त बड़ा शानदार किस्म का शौक इस दफा लाहौर में आपको देखने को मिलेगा इस छत से, क्योंकि इस छत पे दोनों का तजर्बा एक, दोनों की ब्रीडिंग एक, और दोनों के ही उड़ाने की सूझबूझ, अक्ल, फहम और फरासत हर चीज एक जैसी। बड़े लेवल पर दोनों जो है सोचते हैं और बड़े लेवल का शौक करते हैं। हर चीज में बड़े मुकम्मल और जामे उस्ताद मियां नदीम वकीलों वाले और उस्ताद ज़ेड खान, खानों में खान हमारे साथ हैं। तो हम इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं उस्ताद मियां नदीम साहब की तरफ, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, सब दोस्तों भरावां जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज तो कि मियां साहब, शौक की इब्तिदा कब से हुई थी? कितने अरसा पहले आपने जो शौक शुरू किया था? पहला मतलब कितना अरसा हो गया आपको शौक करते हुए? सबसे पहले हमारी राजगढ़ में छत थी, अभी भी घर वहाँ पे है, तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। उसके बाद ज़्यादा टूर्नामेंट वगैरह खेलने का शौक था। फिर हम शागिर्द हो गए उस्ताद कदीर साहब है कृष्ण नगर के, सही। आगे उनके जो उस्ताद है वो पापा नो लखिया, मशहूर हस्ती है, वो मेरे दादा उस्ताद। सही। तो शौक करते करते आज हम इधर आ गए हैं, तो तब से शौक चल रहा है। बीच में 4-5 साल का शायद गैप रहा होगा, लेकिन तो आ ही मुसलसल जाता शौक है। है। हाँ जी, कोई ना कोई वजूहत। तो 25 से 30 साल हो गए हमें इस शौक को करते हुए, चलाते हुए। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह शौक जो है वो चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, तो माशाल्लाह। बाकी आपने सारी बातें कर ही दी हैं। तो ये लाहौर का जो शौक आप देख रहे हैं, ये आप 25-30 साल से देख रहे हैं। हम कहते हैं कि आज से 10 साल 20 साल पहले, मतलब मैं नहीं, ये एक लबेबाम ये बात होती रहती है हर जगह पर। लोग कहते हैं कि जो लाहौर का शौक है ये बहुत चेंज हो गया। पहले 11-12 बजे 1 बजे जो है फैसले हो जाया करते थे, 1 बजे बड़े बहादुर होते थे जो कबूतर बैठा करते थे। तो आजकल का शौक जो है वो तो आपको पता है लाइटों से नीचे बात नहीं है, ये ऐसे ही है। ऐसी। तो आप क्या देख रहे हैं कि वाकई ये डिफरेंस आया है? शौक में डिफरेंस आया है क्या परिंदों में डिफरेंस आया है? किस चीज की वजह से ये शौक में ये फर्क आया? देखिए जी कामरान भाई, ये शौक वाकई आप सही कह रहे हो। उस टाइम गर्मी भी ज्यादा होती थी। जी जी। 48, 49 बल्कि 52 तक भी चली जाती थी। अब वो मौसम नहीं रहा, लेकिन उस टाइम भी जो 12 में कबूतर बैठता था लोग देखने आते थे। अगर 52 में या 49 में जो कबूतर 12-1 में बैठता था ना, लोग देखने आते कि यार ये क्या कबूतर है। क्योंकि गर्मी इतनी होती थी, लेकिन उस टाइम लोगों में इतना वो जुनूनी था जो अब लोगों में है। सही। अब आप देखें, अब लाइटों के तक चलेगी कबूतर भाई, गर्मी भी हो फिर भी शाम तक कबूतर यहाँ उड़ते हैं। ठीक है। हमारी लाहौर की बड़ी टफ कबूतरबाजी है, यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
अब लोगों में काफ़ी शौर आ चुका है। अब ब्रीडिंग के वाले से, उड़ाने के वाले में लोगों में ना बहुत ज़्यादा शौर आ गया। अब आप देखें, ये 10 साल से पहले पीछे चले जाएं, वो रिजल्ट नहीं जो अब रिजल्ट है। हाँ बिल्कुल, और 4-5 साल तो देखें तो वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया ना। बहुत डिफरेंट हो गया। हाँ। 5-6 साल से तो आप देख लेना कि अखीर ही हो गया। अगर मैंने 7:45 बिठाया ना, तो कामरान आपने 10 मिनट का बिठा लिया। हाँ खान साहब ने 5 मिनट कम हाँ। बना लिया, तो खान साहब ने कही बहादुर तो मेरे ही है। 1 मिनट कम हाजी गुज्जर साहब ने बिठा लिया, और बिठाया भी उन्होंने माशाल्लाह। हाँ लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप बहादुर आप नहीं लेके जाना है। बिल्कुल, वो आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते, हाँ। इतना इस वक्त टफ हो गया कंपटीशन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 5-7-8 सालों में मेरे पास 8-10 मेरे पास नाम पड़े जो लाहौर में बहादुर का नाम मैं उठाता रहा हूँ। माशाल्लाह, मुंह से तारीफ नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन हमें यही होता था कि ये हमने ये बिठाया ना, अभी कोई ना कोई किसी का आवाज आ जाएगी, और आती थी। कई दफा मिनटों से रह जाते थे। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि एक से एक प्लेयर लाहौर में है। हमारे लाहौर में ना एक से एक प्लेयर है, और लाहौर ये यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं कहा किसी ने, लाहौर यूनिवर्सिटी है। तो माशाल्लाह अब तो ओवरऑल पंजाब में बहुत आला शौक हो रहा है, खासकर सियालकोट में बहुत अच्छा शौक हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। लाहौर के लेवल के चलता जा रहा है। मौसम में फर्क जरूर है, हमारी लाहौर की कबूतरबाजी और उनकी बहुत फर्क है। सही। अगर उस एरिया का बंदा यहाँ लाहौर में आके शो करेगा, वो नाकाम होगा फौरी तौर पे। फौरी तौर पे। हाँ, बाद में आहिस्ता जैसे आहिस्ता समझ वक्तन में- वक्तन लोग आते रहे हैं। उस्ताद करीम बख्श लाहौर में जब आया था, तो उसकी पहली बाजी मेरे दादा साहब पापा नौलखिए से लगी थी। सही। तो उनसे बाजी अच्छी उड़ी, तो अच्छा शौक हुआ। बाहर के वो वापस चले गए, उनको शिकस्त भी हुई। उसके बाद जो भी आता रहा, जैसे गुजराले के आफत नईम साहब भी आए थे, वो भी यहाँ से आके नाकाम हो गए। अच्छे प्लेयर थे वो, ये मैं किसी की दिलजारी नहीं करना चाहता, बड़े अच्छे प्लेयर थे। गुजराले नंबर 1 पे वो प्लेयर हैं। लेकिन लाहौर की जरा कबूतर भाई जरा मुश्किल थी। उन्होंने चोई सफी से बाजियां लगाई, तो वो कामयाबी नहीं हुई। इस तरह वक्तन लोग आए हैं। तो इस तरह मुस्तफा डेल आया लाहौर में, तो वो एक हमारी एक छत है इमरान बकर मंडी वाली, जी जी। छोटे भाई हैं हमारा उनसे शौक भी मिलके शौक है हमारा वो एक हिस्सा है। वो भी उनकी छत से उन्होंने शो किया, माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आया। तो कहने का मकसद है कि जो भी यहाँ पे है, नाकामी का सामना करना पड़ा। अगर हमारा लाहौर से कोई उस्ताद अगर वहाँ जाता है ना पंजाब में किसी, तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। सही। ये फर्क तो है ना। तो बात आप जो कर रहे थे कि ये अब जो इस दौर में इतना यानी अच्छा रिजल्ट लोगों का आ रहा है, इसकी वजह क्या है? अब लोगों में शौर बहुत आ चुका है, ब्रीडिंग के वाले से, उड़ाने के वाले से। हाँ, खुल गई हैं बातें। खुल गई। अब तो आज आप चैंपियन हो रहे हैं, कल जेडे खान साहब हो गए। इस तरह हमारा एक और छोटा भाई है मियां मुस्तजाब मोशी भाई, माशाल्लाह वो जेड चैंपियन हुए। बिल्कुल ऐसे ही। इस तरह अब ये नहीं कह सकते कि लगातार अब मत मारे लगातार भी रहते रहे हैं, लेकिन अब नहीं। अब कितना शोर आ चुका है। पहले उनका था ना नाम, वो काफी वो बड़ी मेहनत करते थे। अब बिल्कुल लोग बड़ी मेहनत करते हैं। अब जुनूनी शौक है लोगों को, पहले वो शौक भी नहीं था लोगों को। ठीक है, टाइम मिल गया, लेकिन अब तो प्रोफेशनली शौक चल रहा है ना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, रिजल्ट उनका ही आता है। हाँ, परिंदे भी अच्छे होने चाहिए। हम तो कहते हैं ये 4 चीजें हैं। एक तो अच्छे परिंदे होने चाहिए, और एक अच्छी साफ सुथरी जगह पे छत होनी चाहिए, फिर उड़ाने का कारीगर बंदा होना चाहिए, फाइनेंशियली भी वो ठीक हो। ये 4 पहिए हैं गाड़ी के। जिसके पास ये है उसका शौक आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगा। तो जिनमें एक चीज भी स्लिप है ना, उसका वो रिजल्ट वो नहीं हाँ, है, कहीं ना कहीं वो मार खाएगा। बिल्कुल सही होगा। ये बातें सारी। तो उस्ताद जेडे खान साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपकी तो परफॉर्मेंस इसी जमाने की है जिसको मियां साहब बात कर रहे हैं, लेटेस्ट परफॉर्मर हैं आप इस वक्त। पहले भी चलते आए हैं, लेकिन ये भी माशाल्लाह इस वक्त आके भी आपने जो परफॉर्मेंस दी, तो उस वक्त की परफॉर्मेंस और इस वक्त की परफॉर्मेंस में वाकई आपकी कोई मेहनत में कोई फर्क आया है? कोई इस दफा ज्यादा करनी पड़ी थी कि वही रूटीन? जी अस्सलाम वालेकुम सबको। पहले तो फर्क आया कामरान, बड़ा फर्क आया। उधर मेहनत कम करनी पड़ती थी, इधर मेहनत ज्यादा करनी पड़ी है। वो एक तो शहर में था, तो उधर थोड़ा सा जरा साइड पे था,
जल्लो वाली साइड पे जो पार्क था सामने था, वो बड़ा फर्क आ गया। लेकिन इधर जितनी मेहनत की मुझे उतना मज़ा भी आया। सही। कबूतर भी, बात तो पहले नंबर पे बात आती है कि आपके पास परिंदे अच्छे होने चाहिए। जब परिंदे अच्छे हो ना तो फिर उसके नीचे जो बैठा हो मालिक, उसको अगर समझ बूझ है तो वो आपकी मेहनत जो सी है वो रायगा नहीं जाएगी। बिल्कुल सही। ये 2-3 चीज़ें हैं, तो बस इन पे बड़ा फोकस किया और मेहनत की है। परिंदों के बगैर तो कुछ भी नहीं है कोई इंसान। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही परिंदे थे वो जो हमारे वहाँ भी उड़े हैं, और यही परिंदे यहाँ पे आके भी, और उनको सामने लाए हैं, तो उन्होंने मालिक को जो सुरखरू किया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बिल्कुल सही। तो मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा अगर कोई ये कह दे कि जी मेहनत नहीं है तो ये कहना फजूल हो। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, एक ये कमेंट जो है आ गया मियां साहब की बात पे, वो मैं जरा क्लियर कर दूं दोस्तों भाइयों को, कि उन्होंने जो कहा है कि जी ये हाफिज नईम साहब का या किसी का रिजल्ट की जो उन्होंने बात की है, उन्होंने ये बात की है कि लाहौर के माहौल और यहाँ की मौसम के मुताबिक फौरी तौर पे, हाँ, दिल आजारी के लिए नहीं, वो उनका कहने का मकसद है कि अगर पहली दफा कोई आता है तो फौरी तौर पे यहाँ पे एकदम एडजस्ट होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उधर का माहौल ऐसा है। हम माहौल ऐसे चेंज हो जाता है बाद में। वो ऑब्वियसली जो हमारे जितने भी उस्ताद हैं वो काबिल एहतराम है, बिल्कुल सब सीनियर है वो, क्योंकि वो आ गया है ना, गुजरांवाला से कमेंट आ गया, वो कह रहे हैं भाईजान आपने जो ये बात की है कि वो आपके भी लाहौर के काफी लोग हैं, उनका आउटसाइड पर रिजल्ट नहीं अच्छा आया। तो ये होता है, हर किसी के हर एक साथ होता है, ये तो कोई बात ऐसी नहीं है। हाँ। वो देखें, वो हाफिज नईम साहब, मैं कह रहा हूँ सीनियर उस्ताद थे, हाँ। और उनका गुजराला में एक ऐसा नाम था कि वो अव्वल नंबर 1 पे ही आते। जीत की जमानत है माशाल्लाह, अभी भी उनका नाम उस्ताद हुमायूं भट्ट साहब, क्योंकि अब उनकी पार्टी देखो कितनी माशाल्लाह ऊपर जा रही है। मैं ये बात उन्होंने समझी नहीं मेरी बात को। मैं एक बात कर रहा हूँ, लोग बाहर से कोई भी आता था ना, मैंने एक बिलफर्ज नाम लिया ना हाफिज नईम का, जो मुझे याद है, इस तरह मैंने उनका भी लिया है, वो जो है अपना करीम बख्श जी, वो भी आए हैं, वो भी कई उस्ताद आए। एकदम आ गया आप लाहौर को, आप ये नहीं करते आते आप सब लाहौर को जीत लेंगे। इस तरह ये है कि यहाँ का मौसम का फर्क है, समझना पड़ता हाँ, है। ये मैं कह रहा हूँ। वो पहले जैसे वो समझे तो उसके बाद ये बात मैंने एक जनरल बात की है लाहौर के हवाले से, हाँ, कि लाहौर के मौसम को पहले समझना पड़ता है। हमारे लिए जितने सीनियर उस्ताद है हमारे लिए काबिल एहतराम है। नहीं माशाल्लाह, अभी भी हाफिज नईम भट्टी साहब का यहाँ पे लाहौर में जो दोस्त है बाब उनके नजदीक हाँ है, जी, वो उन्हीं वो- के दाना पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, लाहौर में बड़ा अच्छा बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल। या उस्ताद करीम बख्श साहब हैं, वो भी एक सीनियर उस्ताद सीनियर थे, उस्ताद है, लेकिन वो उनकी वक्त एक की पार्टी बात अभी भी, हाँ जी। उनकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी पार्टी है। है। सही। करीम बख्श की वहाँ कसूर में एक अच्छी पार्टी और अच्छा शौक उनका हो रहा है। मैं तो एक बार एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपने हाँ। बात की, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा खान साहब, ये जो और मियां साहब दोनों से बात करके, हमारे एक ट्रेंड चला हुआ है लाहौर में कि टैडी कबूतर जो है ना, ये कामयाबी की जमानत है, लेकिन ये मैं आपकी छत पे आया हूँ तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट कबूतर नजर आ रहे हैं। टैडियों का अक्स बहुत कम कबूतरों में नजर आ रहा है, लेकिन वो अक्स ऐसे भी हो सकता है कि टैडियों में भी काफी कबूतरों का नस्लों का अक्स है। तो इसके बारे में कुछ बताएं कि क्या आप समझते हैं कि उनका होना जरूरी है, तो आपने फिर क्यों नहीं इतनी तादाद उनकी की? मेरे पास टैडी कोई भी नहीं है। मेरे पास मेरे उस्तादों के पुराने कबूतर है, जौनसरे कबूतर है, तो ये कम से कम 50-60 साल पुराने कबूतर है। तो जब वो अल्लाह को प्यारे हुए फिर मेरे पास आ गए, पहले भी थे मेरे पास, तो इन्हीं से हमारा शौक हो रहा है। टैडी कबूतर को बुरे नहीं, अच्छे कबूतर है। टैडी जरा फास्ट कबूतर है, मतलब वो टैडी कहते रेडी, यानी इनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये जो हमारे दूसरे कबूतर हैं थोड़ी जरा मेहनत करनी है, चलते जरा स्लो है, लेकिन ज्यादा देर खुडों में भी यही रहते हैं। ज्यादा देर खुडों में रहने से मुराद क्या है आपकी? कि शॉर्ट कम हो? शॉर्ट कम के ये ज़ाया कम होते हैं, और 5-5 साल 7-7 साल ये खुडों में इसलिए रहे कि ये बाजी में उड़ते आ रहे हैं, और ज़ाया टैडी कबूतर बहुत अच्छे हैं, इसे बुरा नहीं कहता, जल्दी परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन हमारे जो लाहौर का मौसम है ना, इसके हवाले से मैं बात करता हूँ, यहाँ 7 बाजी 7 मौसम लेना है। सही। ये जो मैं अभी बात कर रहा था ना, बाहर के इलाकों का लाहौर का यही फर्क है, 7 दिन 7 दिन मौसम ही लेना है। अच्छा हाँ, ये तो होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बाहर से कोई आके कामयाब नहीं होता। शायद किसी भाई ने बुरा मना लिया हुआ, मैं माजरत भी करता हूँ। जी जी। लेकिन जो लाहौर का मौसम है ना, 7 की 7 बाजी कामन चेंज है।
لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ لاہور کا موسم میں ٹھہراؤ ہے, جو صبح ہوتا ہے وہی شام تک ہوتا ہے. دیکھیں آج اگر 47 پڑ رہی ہے نا, کل بارش ہوگی, پرسوں 35 ہوگی. ہاں, اور کبوتر مجبوری ہے وہی کبوتر ڈالنے. ہاں ٹیڈی کبوتر ہے, یہ گرائی زیادہ کرتے ہیں, وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے, وہ 47 ضائع ہوتے ہیں. ہوتا ہے 35 پہ. ہمارے جونسرے کیا کرتے ہیں, ہوں, میرا خیال لاہور میں کم جونسرے ہیں, یا مران بکر منڈی ہے, چھوٹا بھائی اس کے پاس ہے, یا میرے پاس ہے, یا کم لوگوں کے پاس ہے جو ہم اڑا رہے ہیں بازو میں. جی جی. تو یہ ذرا ان کی ضائع تعداد, یعنی نرم بھی ہو گئے نا تب بھی یہ وفادار ہیں گھر جلدی جونسرے اور جونسرے کے مارے. اور ایک فروزپوری بریڈ ہے, تو کچھ میرے پاس قصوری کبوتر ہیں جو ان میں آپس میں میل ڈال کے اڑاتے ہیں ہم. تو اس طرح اس حوالے سے بات کر رہا ہوں, ٹیڈی کبوتر اچھے کبوتر ہیں لیکن اپنی اپنی پسند ہے, چوائس ہے, تو ہم انہیں زیادہ پسند کرتے ہیں. ان کا ضائع ہونا ذرا کم ہے. ٹیڈی کی تعداد زیادہ چھوڑو گے تو اس میں سے آپ نکالو گے نا. اچھا استاد, زیڈے خان صاحب جو ہیں ان کے پاس بھی کوئی کبوتر ڈفرنٹ ہی ہیں, وہ عجیب جالدار اور وہ ہاں جی, لال پرانے سے- کبوتر ہاں. ہیں, پرانے کبوتر ہیں. وہ کیا کبوتر ہیں؟ دراصل ایکچولی وہ نا کیونکہ اب نانا وہ جی میرے لے کے آئے تھے. نانا جی کے پاس کبوتر تھے, وہ پھر میرے پاس کبوتر آئے ہیں, تو وہ والد صاحب نے جب مینٹین کیے تو ان میں سے پھر وہ کبوتر جو مس سے جالدار کبوتر ہیں ہاں, میرے مس سے. پاس, ہاں, وہ وہ مس سے کبوتر جالدار ہیں. کبوتر ہے میرے پاس. پرانی نسل کے کبوتر ہیں اس کے پاس. پرانی بریڈ میں سے ہیں وہ, تقریباً بہت پرانے ہیں, وہ چلتے آ رہے ہیں میرے پاس. مجھے ان سے محبت ہے, لگاؤ بھی ہے. اور کچھ یہ وہ لاہوری مس سے نہیں ہے جو قصور سے چلے تھے, مس نہیں 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 وہ نہیں، کبوتر وہ کبوتر نہیں ہے. صرف یہ کہ پہچان کے لیے آپ نے مس سے کہہ دیا کہ جی کلر وہ ان سے جی, match کلر وہ ان سے میچ کرتا ہے. دراصل یہ میرے نانا جی تھے جلندھر بستی کے رہنے والے, تو جب وہ ادھر پارٹیشن کے بعد ادھر آئے تو پھر وہ ساتھ ہی لے کر آئے تھے. صحیح صحیح. تو وہ کبوتر جو میرے پاس اب بھی ہیں الحمدللہ اور بڑی تعداد میں, انہی کبوتروں نے سیرا سجایا ہے. کچھ لاہوری کبوتر تھے جو میرے پاس آئے ہیں تقریباً. اب وہ میرے پاس اس وقت میں میاں صاحب کی طرف بیٹھا ہوں تو میں وہ دکھا بھی نہیں سکتا. تو جو لاہوری کبوتر تھے وہ گلابی آنکھ کے کبوتر تھے. لاہوری سے مراد کیا؟ لاہوری ٹیڈی کا مطلب لاہوری. گولڈن یہ ٹیڈی تو بعد میں نام لاہور ڈالا کے ہے. کبوتر ہیں. ٹیڈی تو بعد میں بنے. ٹیڈی تو بعد میں نام ڈالا ہے نا. ایک لاہوری ایک علیحدہ سے جی لاہوری علیحدہ سے کبوتر تھے, گلابی پکی گلابی آنکھ میں, اچھا جونسرے گوڑے جنہیں شاہ سرے بھی کہتے تھے, کسی وقت میں انہیں شاہ سرے بھی کہتے تھے, سلائیوں والے کبوتر گوڑے جونسرے, وہ لاہوری کبوتر ہیں. اور وہ الحمدللہ میرے پاس وہ بھی ہیں. لاہوری سے ٹیڈی مراد تو- کیا آپ کے کہنے کا مقصد کہ وہ شروع سے لاہور میں جی قدیمی جی, کبوتر چلتے میں ہیں؟ لاہور میں ہی پیدا ہوا ہوں, یہی لاہور سے میری پیدائش ہے. انڈیا سے سیدھا انڈیا لاہور سے میں۔ تو جو کبوتر ہیں وہ جالدار کبوتر ہیں, جو لاہوری کبوتر ہیں وہ لاہور کے کبوتر ہیں, یہ بھی پرانے کبوتر ہیں. تو انہی کا رزلٹ آیا میرے پاس, تو الحمدللہ وہ چلتے آ رہے ہیں. جیٹ چیمپئن شپ بھی انہی کبوتروں کی سر پہ ہوئی ہے, اور الحمدللہ جو رزلٹ میرا ادھر یہ چھت ہے میری شہر کے اندر, اس میں بھی انہی کبوتروں کا زیادہ کردار ہے. اس میں 3-4 کلر کے کبوتر نکلتے ہیں, سلارے بھی نکلتے ہیں, جالدار بھی نکلتے ہیں, کالے جالدار بھی نکلتے ہیں. میں نے تو کسی سے نہیں لیے, وہ اسی انہی میں نکلتے آ انہی میں نکلتے آ رہے ہیں. انہی کو میں مینٹین کر رہا ہوں, اور الحمدللہ انہوں نے رزلٹ دیا سارا. بالکل صحیح ہوگا. اچھا, یہ اب ہم بات کریں جیسے آپ کے پاس جونسرے اور ایک فیروز پوری ٹائپ ہم نے کبوتر دیکھے ہیں کوئی. جی جی, فیروز پوری اور سیالکوٹی کبوتر ہیں ہاں. میرے پاس, میرے استادوں کے کبوتر ہیں. کچھ چند کبوتر میں نے عمران بکر منڈی سے بھی لیے ہیں. وہ تو چھوٹے دوستی بھائی ہے ہیں, نا, وہ دوستی ہے, جیسے مینٹین کرنے کے وہ لیے maintain بلڈ لیے. بیچ میں آ گیا. میں وہ بھائی کے عمران بھائی کے بھی ہیں, کیونکہ عمران بھائی کا ہمارا کٹھا شوق ہے, صحیح. یہاں سے بھی انہوں نے شو کیا ہے. صحیح. تو لہذا باقی میرے استاد کے پرانے کبوتر ہیں. فیروز پوری کبوتر ہے وہ میں نے پرچیز کیے تھے نا. کچھ قصوری کبوتر ہیں, تو ان کو میں نے ملا کے نا, تو ان میں سے میں اپنی میکنگ ہے ساری. اپنی میکنگ بنا رہے ہیں, اڑا رہے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ ایک ہر جگہ ایک بات بہت عام ہے, عام فہم سمجھی جاتی ہے کہ جب تک لال آنکھ نہیں پڑے گی شام میں نہیں ہوگی. نہیں, ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جاننے بھی ہو رہی ہیں. لال آنکھ والے جو کبوتر ہیں بہت اچھے ہیں. اچھا, کراس کوئی بھی آپ ڈالیں گے نا تو آپ دیکھیں اڑانے کے لیے تو اچھا رزلٹ ہے. اب جو ٹیڈی کبوتر ہیں, یہ ٹیڈی نام شروع کیا چوئی سفی محمد بٹی, ہمارے لاہور کے سینئر استاد ہیں. انہوں نے بھی کبوتر بیچ میں ڈال کے ٹیڈی بنائے ہیں. صحیح.
اس میں یہ سیالکوٹی پر بھی ہے، تو مصے بھی ہیں، اس میں کسوری بھی ہیں، تو انہوں نے ماشاءاللہ ایک بریڈ کا متعارف کرا دیا ٹیڈی چل رہا ہے نا، وہ بنائے ہیں انہوں نے۔ اس طرح ہمارے پاس جو پرانے کبوتر ہیں، اگر ہم ان میں سے کوئی کراس ڈال کے جب نسل آگے ہمارے اڑ رہے ہیں تو ہم بھی کوئی نام دے دیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کسوری کبوتر جو ہے نا، خالی جونسرے بھی ہم ڈال کے اڑاتے ہیں تب بھی اڑتے ہیں۔ ہاں ڈفرینٹ ہاں جی، اب یہ پرانے چلے آ رہے ہیں جونسرے سے ہم نے کئی اور بھی تو بیچ میں ڈال لیے نا، دیکھیں آپ صرف سیالکوٹی آپ کہتے ہیں، سیالکوٹی جینون بھی اڑتے ہیں۔ اب یہ جو میرے استاد پاپے نولکھی نے جو اڑائے ہیں آج سے 50 سال پہلے، تو وہ جونسرے کبوتر اڑے ہیں، اس میں کوئی کراس نہیں تھا، تو وہ 4-5 بجے تک 48-49 ٹمپریچر میں اڑتے رہے ہیں، اس میں کچھ بھی کراس تو نہیں تھا۔ ہمارے پاس بھی کچھ ایسے کبوتر ہیں جس میں ابھی کراس بھی نہیں ڈالا، وہ بھی اڑ رہے ہیں بیچ میں۔ صحیح۔ صرف بات پتہ کیا، مینٹین کرنے کے لیے اگر اس کو آپ آپس میں لگا کے آپ کبوتروں کی اگر پوزیشن چینج کر دی نا، مطلب تیلیاں موٹی ہو گئی، ٹانگیں موٹی ہو گئی، ان کے گٹ موٹے ہو گئے، ناسیں موٹی ہو گئی، اس طرح کبوتر خراب ہونا شروع ہو جائیں گے جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ خراب ہو رہے ہیں۔ اگر ان کو صحیح کرنا ہے تو آپ اپنے کبوتروں میں سے بھی صحیح کر سکتے ہیں، یہ آپ کی آنکھیں ہیں۔ صحیح، اگر باہر کا پر ڈالیں گے اس سے یہ ہوگا کہ اور اچھے ہو جائیں گے، بلڈ ذرا ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ تو پہلے پرانے استاد جو تھے نا ہمارے، وہ برا سمجھتے تھے کہ میں کامران باغ سے پر لا کے ڈالوں گا تو لوگ کہیں گے وہ تو کامران کی وجہ سے اڑ رہے ہیں۔ ان پرانے استادوں کو یہ تھا، وہ اپنے کبوتروں میں لگاتے رہے، کچھ کبوتر زیادہ خراب بھی ہو جاتے تھے، اچھے کام نکلتے تھے، خراب زیادہ نکلتے تھے۔ صحیح، پرانے استادوں میں یہ تھا وہ کسی کا پر باہر سے ڈالتے ہی نہیں تھے۔ وہ اپنوں کو اچھا، انہیں کی وجہ سے یہ ہے کہ پیورٹی میں مجھے بھی پیورٹی میں مل گئے۔ اب میں کوئی کراس ڈالتا ہوں تو بڑا مزہ، اچھا رزلٹ آتا ہے۔ اور رچ اور ہاں، اور کیونکہ یہ سیالکوٹی وفادار کبوتر ہے، صحیح، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، بنانا کام ہے۔ اگر کسوری کسی کے پاس ہے، جیسے سہیل خان صاحب کے پاس کسوری کبوتر ہے، ان کے پاس جونسرے تو نہیں ہے۔ پیچھے ہم گئے ہوئے تھے کچھ دن پہلے، میں بھی تھا، عمران بھائی تھا، زیڈ خان صاحب، میں دیکھے بڑا مزہ آیا۔ اب کسوریوں میں سے کسوری ڈال کے وہ شوق کر رہے ہیں، ان کا اچھا شوق ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے مینٹین رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں وہ بھی مطلب پر اگر ڈالتے ہیں تو کسوری ڈالتے ہیں، لیکن ڈفرینٹ انہوں نے پرندے دکھائے بڑے بڑے اچھے، ماشاءاللہ مزہ آیا۔ اسی طرح جونسروں کو آپ نے اگر آپ کو یہ عقل نہیں ہے نا بنانے کی تو آپ خراب کر لو گے۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ کبوتر آپ خرید کے بھی لے آئیں، جتنے مرضی لیں، جب تک آپ کو بنانے کی نہیں پتا نا تو کبوتر آپ سے خراب ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ یہ ایک فن ہے۔ مقصد زیڈ خان صاحب، مقصد ان کا کہنے کا یہ ہوا کہ کبوتر کے مطلب ہم جو کہتے ہیں کہ ٹیڈی ضمانت ہے یا کمگر ضمانت ہے، یہ ہے کہ اڑنے کی، یہ نہیں ہے مقصد۔ آپ کی عقل، جی ہاں، بریڈنگ، بالکل، اور ان کے کبوتروں کے پوائنٹس کو، اسٹرکچر کو مینٹین رکھنا، ان میں ہر چیز کو وہ رکھنا جو ہے، تو یہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اسٹرکچر کو اور پوائنٹس کو مینٹین رکھنا ہے تو وہ کن کن پوائنٹس کو زیادہ دیکھنا چاہیے کہ وہ مینٹین رہیں گے تو کبوتر آپ کا جو چل سکے گا؟ دیکھیں، یہ تو جس نے پرندے رکھے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کا ہاتھ کا سانچہ ہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کبوتر کے پوائنٹس جو ہیں وہ تو سب کو ہی پتہ ہے، یہ تو کہنا بات جو سے فضول ہوگی نا کہنے کی۔ کبوتر کا ریشم ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، میں اپنی بات ایک چھوٹی سی کرتا ہوں کہ میں نے جو کبوتر میرے پاس آئے ہیں نا، تو ان کبوتروں نے جنہوں نے شروع سے لے کے اب تک جو چلتے آ رہے ہیں، میں نے خیال جو کیا ہے، اور لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، کبوتر کی مینٹیننس تو اسی طرح برقرار رہتی ہے نا۔ میں نے یہاں پہ کبوتر بیچ میں جو لاہوری کبوتر تھے میرے پاس آئے، ان کبوتروں کو میں نے بیچ میں اٹیچ کیا ان کا پر مینٹین کرنے کے لیے۔ اس کے بغیر تو کبوتر بازی جون سے نا، وہ اگر کوئی کہے کہ جی میں نے بالکل ڈالا ہی بیچ میں کچھ نہیں ہے تو فضول ہے۔ ہاں، کچھ لوگ چھپاتے مہر ہیں۔ صاحب کے پاس کبوتر تھے، بڑے اچھے کبوتر تھے مہر صاحب کے پاس، مہر اصغر صاحب کے پاس بڑے اچھے کبوتر تھے، ایک وقت میں ان کا بڑا نام تھا الحمدللہ، اور اب بھی ایسے ہی ہے۔ کبوتر کے پر، اس کی تیلی، یہ آپ کی نظر ہی ہے نا، جیسے میاں صاحب نے بات کی ہے کہ نظر ہے، انسان کی نظر ہے۔ جب اور سب سے بنیادی جو چیز ہے نا، یہ لیبارٹری ہے۔ اچھا کبوتر آپ کا بنے گا جب آپ کے پاس لیبارٹری ہوگی۔
अगर कोई कहता है ना कि नहीं जी मैं ये कबूतर ये जोड़ा लगा लिया तो ये फजूल है। नहीं, अब जैसे आपने बात की ना रेशम की, अगर हम सिर्फ एक रेशम के पॉइंट पे रहे तो मैं कराची में ना बहुत अच्छे अच्छे रेशम परे कबूतर देखे। नहीं रेशम परे के साथ आप देखें ना रेशम तो लेकिन कबूतर वो का रामपुरी कबूतर है, अब वो प्योरिटी में बहुत हद तक प्योर है। अभी तक कई लोगों के पास है, अलीम भाई हैं, उस्ताद अलीम खान रामपुरी, उनके पास वो इतने इतने बड़े हैं वो रेशम। नहीं और रेशम जब आप उनको पकड़े तो ब्रीड वो हो वेट भी कुछ नहीं है, हर वेट चीज भी कुछ नहीं है। लेकिन जहां तक हमने उनको देखा है तो मेरा अंदाजा है कि वो कबूतर जो है ना 2 घंटे 2.5 घंटे भी मुश्किल है कि वो उड़ जाए। असल में वो लंबे कर लिए ना, देखिए ना, लंबे खराब भी हैं, कर लिए। साइज भी उनका है, नहीं वो उनके साइज जो वो कुदरती कुदरती बात साइज खत्म नहीं ना, ये रेशम के बाद और भी चीजें हैं। वही ना मैं बात कर रहा हूँ कि आपने फिर बीच में एक पॉइंट दे दिया कि मैंने उनको मेंटेन करने के लिए क्रॉस किया। जी बिल्कुल। मकसद मैं ये कह रहा हूँ कि आपने उनको क्रॉस किया मेंटेन करने के लिए, तो आपने किन पॉइंट्स को मद्देनजर रख के क्रॉस किया? अब जैसे कि यार इस तरह के पर को इस तरह का पर देना चाहिए, इस तरह की तीली को या इस तरह की, इन चीजों को भी देखा कि बस ये कि नहीं जी ये जोश रहता है हम इससे नहीं बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बात नहीं। बता। मेरे पास जो कबूतर शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास चपटी तीली के कबूतर हैं, पुराने कबूतर हैं और अब भी उसी हालत में है। पॉइंट दे दिया ना उन्होंने। वो चपटी तीली के मेरे कबूतर हैं और परों का बैलेंस मैंने ये नहीं किया कि अगर ये पर चौड़ा है या ये इस तरह का पर है, हमेशा उसकी मेंटेनेंस की है। जो कबूतर की मैंने हमेशा ये किया कि चपटी तीली के चपटी तीली ही लगाई है, तो ज्यादा बारीक नहीं होगी। नहीं सही। गोल तिली लगाएंगे ना वो फिर वो तो कबूतर मेरे हाथ में आएंगे तो फिर जब मैं दिखाऊंगा अपने कबूतर तो फिर आपको अंदाजा होगा कि नहीं, कबूतर एक की फर्क बनावट भी तो आ उसके जाता है ना, पास। चपटी तीली वाले कबूतर आजकल जितने भी तेज कबूतर हैं उनकी भी तीली चपटी है। यार अच्छा कामरा मेरे पास तेजी तो पुराने कबूतर उनकी तीली चपटी है। नहीं तीली चपटी तो है, तो लेकिन कोई डाला ही आजकल नहीं मैं एक उन्होंने। बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग करते हैं ना कि चपटी से चपटी लगाई, वो कुछ अच्छा तीली का भी किरदार, जहां तक अब मैं बीच में बैठा बात करूँ खतरनाक हो चुका। तीली भी हमेशा कबूतर के मुताबिक ही होती है, बनती है, बिल्कुल ऐसी है। और जब चपटी से चपटी लगती है तो ऑब्वियसली कबूतर के स्ट्रक्चर पे भी तो फर्क आ जाता है, वो भी तो तेजी की तरफ चला जाता है। वो भी तेजी की तरफ चल जाता है। यही मैं बात कर रहा हूँ ना, जब आपने कबूतर को खराब, अगर जब देखिए चपटी से चपटी लगाएंगे कबूतर बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा, उसको वो बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा, वो खराबी में नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा खराबी में। भाई वही तो आपका जब आपकी खराबी आंखें में हैं। आएगा कि जब आप आपको गोल पता चल तीली, जाएगा। आप ये जो सी ये गोल तीली जो सी ना, ये सियालकोटी कबूतर आप देख लें उनमें गोल तीली है। आप जैसा मर्जी कबूतर पकड़ के देख लें, उनकी तीलियां गोल है, नीचे से मोटाई में है, ऊपर से बरीक हो रही है। ऐसी है ना, उसके साथ जब अटैच करेंगे तो देखिए फिर तीली चेंज होगी। कबूतर बनाने पड़ते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, काफी हमारे दोस्त भी हैं, उस्तादा भी हैं, वो कबूतर उन्होंने काफी मिक्स किए होते हैं, मगर वो नहीं बताते। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मैंने कबूतर बीच में ऐसे ऐसे बनाए हैं, जैसे खान साहब ने कहा ये लोरी है, कबूतर कुछ उधर से आए। जी जी बिल्कुल डाले हैं मैंने। मैं भी बता रहा हूँ कि कबूतर जब तक आप डालोगे नहीं कबूतर नहीं बनते। कुछ दोस्तों को ये है कि वो बताते नहीं है, वो कहते हैं ये हमारा ही है, तो ये गलत है। कबूतर जब तक आप चोई सखी ने टैडी बनाए हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में मैंने उनका सुना है, मुझे बड़ा मजा आया। अच्छा चौधरी साहब कहते हैं मैंने मेंटेन किए, बनाए नहीं है, वो कहते हैं मुझे मिस्त्री नहीं साहब से आए हैं। नहीं उन्होंने कहा मैंने डाले हैं। डाले हैं कहा है, लेकिन अच्छा, कहा है ना डाले हैं। टैडी बनाना, टैडी बनाए उन्होंने, मिस्त्री साहब ने बनाए बनाया, लेकिन उसमें कबूतर डाले हैं। वो बाद में अच्छा ये भी बड़ी मजे कबूतर डाल के ही बनते हैं। जो कहता है ना मैंने अकेले से बना हाँ, लिया, ये तो नहीं। ये झूठ है। ये बात तो है कि उन्होंने मेंटेन किया। तो हम तो कह रहे हैं ये बनाने से। हाँ, एक चीज सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, जिस बंदे को ये पता ना ये जो डाल रहा हूँ आगे निकल के आ रहा है, अगर उसको ये समझ है ना, वो रिजल्ट भी वो ले रहा है, वो ही कबूतर बनाना जानता है। सही कि यार ये डालने से ये खराब हो रहे हैं, तो ये डालने से रिजल्ट भी आ रहा है, आगे वो बनाना शुरू कर देता अच्छा, हर कबूतर घर भी तो कबूतरबाज नहीं है ना, हाँ ये भी बात है। ये भी तो बात है ना कि अब लेबोरेटरी हर किसी के पास नहीं है, हर कबूतर घर कबूतरबाज नहीं है। है। ऐसा ही है। अब उड़ाने का शोभा लहदा है। अब जोड़ों में ये मेरे छोटे भाई बैठे हुए हैं, उस्ताद मियां नवीर, इसको इनका तकल्लुस है दादा उस्ताद। अच्छा, अब जोड़ों में माशाल्लाह ज्यादातर यही इंटरेस्ट लेते हैं, और जोड़ों में माशाल्लाह जोड़े ये भी लगाते हैं, सही। इनको काफी फर्क है माशाल्लाह। तो हम जो शो करते हैं ना, ये मेरा छोटा भाई होता है, मैं होता हूँ, एक भाई वो छोटा उधर खड़ा है, आजा भी तुम इधर।
छत पे ये एक छोटा भाई मेरा, छत पे ये होते हैं। सही हो गया, इधर आ जाए, इधर बैठ जाए। बात कर रहे थे कि मेंटेन की और कबूतर, सबसे पहले इंसान को ये पता होना चाहिए कि यार ये कबूतर बहुत अच्छा है। कलर का कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं होता है। ये कलर ये अगर जाफ है तो ये अच्छा नहीं है, हरा है तो ये अच्छा नहीं है। हर कलर के अच्छे होते हैं। हर कलर में क्वालिटी होती है। अगर वो जोनसे में क्वालिटी है ना तो उड़ेगा, सही, अगर वही क्वालिटी अगर जाख में है तो वही उड़ेगा। ठीक है। और ज्यादातर लोग जोड़ा लगाते हैं ना, वो भला क्या करते हैं, वो कलर से कलर में बेचते हैं। हाँ, वो वही ये नहीं खराबी है। देखते कि अगर कबूतर बहुत अच्छा ना, जालदार कबूतर, उसके साथ मादी लगा दी, उसके पर भी अच्छे नहीं, कुछ नहीं कलर, वो क्या है फिर आगे खराबी करना शुरू हो जाते हैं। ये चीज आगे बहुत खराब करती है। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर हम कहते हैं ना, अक्सर ज्यादातर लोग जोड़े लगाते हैं, नर बहुत अच्छा होता है, मादी हल्की होती है। कभी ये लोग करें ना कि मादी बहुत अच्छी लगाएं, नर दरमियाना लगाए, क्या बात। रिजल्ट जो सा ना, रिजल्ट 100% आता है। अच्छे से अच्छे का भी रिजल्ट नहीं आता। इसकी वजह क्या? जितना लोगों को पता है उतना वो लगाते नहीं, वो जोड़ा। अगर जैसे आपने कहा कि मादियां अच्छी लगाओ, नर दरमियाना भी लग जाए तो काम चलेगा, हाँ जी, तो क्या बच्चे पे किस चीज का फर्क पड़ता है? क्या असर आता है उसके स्ट्रक्चर में? कोई फर्क आ जाता है कि परों में फर्क आता है? क्या फर्क देखो, आपने देखा है ऐसा? नर जो सा ना मजबूत होना चाहिए, मादी होनी चाहिए प्रवासी। परवाजी मजबूती वहां से है। अच्छा, वो प्रवासी जब होगा ना, उन्हों का जो बच्चा है ना, वो दोनों मेल आ जाएंगे बीच में। ठीक हो। अक्सर बाज दफा कबूतर बहुत अच्छे होते हैं, मादी हल्की होती है, वो एक उड़ गया एक चला गया। ठीक है, जहां तक आप तीली की बात कर रहे हैं ना, तीली की बात सुन लें। तीली पीछे से चपटी होती है, आगे से ब्रीक होती जाती है। हाँ जी। अब ये नोट करना कि ये आगे कितनी कितनी जाकर ब्रीक होती है। हाँ, यही मैं बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, सारी जितने भी कबूतर पकड़ लो, डरबी में देख लो, घर में देख लो, सबकी चपटी है। गोल तीली के ना पहले होते थे किसी दौर में, जब 11-12 बजे तक बैठते थे। अब जो है ना, हर किसी के पास चपटी है। ऐसी चपटी वाली भी नहीं उठते। सही बात है। देखो फेयरनेस आ गई ना, फेयरनेस आ गई देखो, लोगों में। हम कहते हैं ना चपटी वाले, वो भी नहीं उठते। लेकिन उनमें अगर पॉइंट अच्छे नहीं है, हाँ, चप्पल वाले भी लोग बात आई है अच्छे कबूतर। पॉइंटों पे बात आ जाती है ना, फिर वो आके अच्छा रेशमपन के कबूतर साथ किसी भी कलर में होता है, उड़ता है। ये तो हम कहते हैं ना यार, ये चीना ये नहीं उड़ेगा, ये जोंसा नहीं अच्छा, उड़ेगा। टैडी तो टैडी उड़ते हैं, ऐसे नहीं है। जोंसरे तो जोंसरे उड़ते हैं, ऐसे नहीं है। अगर एक पॉइंट अच्छा है, बाकी नहीं अच्छे, तो वो नहीं उड़ेगा। चट्टी तीली तो वो बता रहे हैं ना कि सब में होती है, मेंटेनेंस तो बहुत लेकिन उसके साथ उनके अच्छे पॉइंट नहीं होंगे। अच्छा पॉइंट के साथ फिर जब आपने रिजल्ट ले ली, फिर ब्लड की बात आ जाती है। फिर हम कहते हैं ये इसका ब्लड अच्छा है। ब्लड का कैसे पता चलता है? रिजल्ट से ही। जब रिजल्ट से लेता है, यार ये हमारा ब्लड बड़ा अच्छा है। वो लेबॉर्ट्री आ गई ना, क्या लेबॉर्ट्री आपके पास होनी बहुत जरूरी है, उसके बगैर कबूतरबाजी नहीं है। दूसरी बात आप कहते हैं ना प्योरिटी, प्योरिटी कबूतर किसी को नहीं पसंद आता। अच्छा, अगर प्योरिटी में कबूतर दिखाना है, वो किसी को पसंद नहीं आएगा। हाँ ये तो है। क्यों? जो बना होगा वो पूरे पॉइंटों में जब होगा। हम कबूतर को तराश करके बनाते हैं ना, वो हर कोई पसंद करता है उसको कि यार ये कबूतर बहुत अच्छे, इसके पर भी अच्छे हैं, इसका वजूद भी बॉडी अच्छा है, अच्छी है। इसकी हर चीज अच्छी है। अगर हम प्योरिटी में आते हैं ना, तो प्योरिटी में ज्यादा चौड़ाई परों में आके वजूद बेढंगा हो जाता है। हाँ, ठीक है, अब उसको बनाना जो सा ना, वो आपका काम वो आपका काम कि ये किस तरह बनाते हैं, इसमें कौन सी मादी ऐसी लगे जो आगे बच्चे अच्छे बना। बिल्कुल। एक होता है कबूतर ज्यादा उम्र का होता है, कबूतरी छोटी उम्र की होती है। ठीक है, वो ज्यादातर मादी के ऊपर जाते हैं बच्चे, बिल्कुल सही। ताकत ठीक में है। ज्यादा होती है ना। क्योंकि प्योरिटी में हर बंदा के अच्छे कबूतर राशियों को कहता है प्योरिटी में। प्योरिटी में ये कबूतर नहीं होते, बना हुए कबूतर को प्योरिटी में कहते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, प्योरिटी में कबूतर किसी को भी पसंद नहीं आता है। हाँ, समझदार बंदा है, वो ये समझता है यार ये अच्छे ब्लड का कबूतर है, प्योरिटी में है। अब इसको किस तरह बनाता है। अब बाद दफा इस तरह होता है कि किसी छत पर जाओ ना, हमें कबूतर पसंद नहीं आएगा, प्योरिटी में ना पसंद नहीं आएगा, आगे उनके बच्चे बड़े अच्छे हैं। हाँ, वो कहेगा मेरे तो अच्छे उड़ते हैं यार। ज्यादातर लोग नर दिखाते हैं, मादी नहीं दिखाते। सही। ठीक है, वो मादी दिखाओ ना, मादी के जब मादी छोटी उम्र की लगाओगे, कबूतर प्योरिटी में बड़ी उम्र का है, वो मादी अपनी तरफ खींचेगी, वो फिर बनाएगी। उससे आगे जितना मर्जी बनाते रहो, वो चलते रहते वो चलते रहते हैं। हैं। वो वजह वो मादी बन रही होती है। बस अच्छा, अभी आपने एक बात की, उसका जवाब दें, फिर उसके बाद हम बाकियों के पास जाएंगे। नर मजबूत होना चाहिए, मादी परवाजी होनी चाहिए, हाँ जी, ये कैसे पता चलेगा? नर मजबूत जो कबूतर उड़ाना जानता है,
ठीक है, जो मैदान में होता है उसको पता है ये कबूतर मेरा नहीं मजबूत नहीं मजबूत Points से की बात कर रहे हैं, कैसे पॉइंट्स में हम क्या उसको कहेंगे, वो एक ब्लड उसका जो हमने उड़ाया हुआ है इस वजह से हम उसको मजबूत कह रहे हैं या किसी फर्क नस्ल की वजह से कह रहे हैं या उसकी पॉइंट्स की वजह से कह रहे हैं? उसकी पॉइंट की वजह से कह रहे हैं। उसका एक तो वजूद का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, एक उसका कद अच्छा होना चाहिए। कद, हाँ जी, जो उसका वजूद उसका अच्छा होना चाहिए, परों में उसका इतने अच्छे पर नहीं होने चाहिए, दरमियाने पर होने चाहिए। ठीक है, बाकी हर चीज मादी में एक मलैनियत होनी कह चाहिए। रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छे पर अगर उसके भी लग गए तो उसके भी लगे, नहीं, वो खराब निकलते हैं, काम खराब तजर्बे हमने की। वो ज्यादा अच्छे परों वाला कबूतर होगा, मादी होगा ना, ये खराब होते हैं। दरमियाना कबूतर होना चाहिए, वजूद अच्छा होना चाहिए उसका, मादी होनी चाहिए मुलायम, अच्छे परों की मादी होनी चाहिए। अब ये उड़ाने का कह रहा हूँ, जो अच्छे से अच्छा लगेगा ना वो बनाने के काम आते हैं, उनको उड़ाना नहीं आपने। एक बात मैं भी कहता चलूं, अब वो ब्रीडिंग की वो बात कर रहे हैं उड़ाने के लिए, अगर अच्छे से अच्छे लगाएंगे ना उसमें अच्छे ही निकलेंगे, लेकिन वो प्योरिटी आगे में काम आएंगे। आगे काम आएंगे, वो खुडे के अंदर रह के काम आएंगे। नस्ल बनाने के लिए। देखिए वो जब चलाना है ना, आपने एक सिस्टम चलाना है, आपने उनको अच्छे को अच्छे से लगाएंगे तो सिस्टम चलेगा। सही। तो ये तो नहीं कि अगर आप बातें अब हो रही हैं तो ठीक है, वो बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। उड़ाने के लिए ठीक है। उड़ाने के लिए तो जोन सा है वो थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, थोड़ी सी लगा दी, सख्त लगा दी, नरम लगा दिया, वो चलता है काम, सिलसिला चलता है। लेकिन अगर आपने चलाने है कि आपने एक ब्लड लाइन चलानी है तो उसको अच्छे से अच्छा लगाएंगे तो वो अच्छा ही निकलेगा। फिर वो तो नहीं है कि अगर आप एक सख्त लगा दें, एक नरम लगा दें, फिर आप बाद में उसको फिर मेंटेन करते रहें। अच्छा, बात चूंकि मैंने स्टार्ट मैंने- की थी ना कि हमने मैंने तो technical हमेशा बातें जोन सा करेंगे, ना- तो इसमें टेक्निकली चल रहा है काम। तो अब ये जो आपने बात की कि भी बनाने के और उड़ाने का जो फर्क आपने जैसे बात कर रहे हैं, इसी में एक चीज और जो है, जो मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि अक्सर जगहों पे लोग बात करते हैं दाना पानी, सवाल इसी से जुड़ा हुआ, अलग नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो दाना पानी के जोर पे कबूतर उड़ा रहे होते हैं। वो कहते हैं कबूतर 12 बजे बैठ रहा है और इन्हों असी लावांगे 6 बजे बैठेगा। बाद में वो 6 बजे वाला जो है ना ब्रीडिंग में डला होता है 6 बजे, हालांकि वो 6 बजे वाला नहीं है, वो 12 बजे वाला 12 बजे बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही है ना। ऐसे। तो वो बाजी में हमारे पास अब रिजल्ट हमारे पास उसका 6 बजे आया, जो ऑन उस पे ऑन रिकॉर्ड आया। वो लोग उसको चला देते हैं, वहां से आगे काम वो भी खराबी की तरफ जाता है। नहीं, अब एक चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं कि एक कबूतर हमारे यहाँ बनते हैं 2 तरह के। एक है कि हमें संभालना पड़ता है, एक है कि कबूतर संभल जाता है और ये उस्ताद पकड़ के बता रहा होता है कि इन्हों तेनों सामना भी नहीं पैना, ये आप ही सेट हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। क्या ये चीज भी हमारी मेंटेनेंस में ही आएगी? इन चीजों को मिलाने से ही इस तरह के कबूतर का स्ट्रक्चर चेंज किया जाएगा? जी बिल्कुल, मेंटेनेंस में आता है। स्ट्रक्चर जो कबूतर का स्ट्रक्चर है ना, जब वो हाथ में आता है तो फिर वो अपना उसकी बॉडी बताती है कि मैंने आके बैठना है, मैंने थकना नहीं है। और जब बात शुरू करते हैं यहीं से उसमें उसके मुख्तलिफ उसके पॉइंट फिर आ जाते हैं। कबूतर के पॉइंट तो फिर वही है ना सारे, हड्डी जोड़ ये। हड्डी जोड़ उसकी, उसके शोल्डर उसका बरीक हो, हम्म। बॉडी जो सी उसकी मजबूत हो, मुलायमियत जरूरी है बीच में। मुलायमियत वो तो first point आ गया फर्स्ट ना पॉइंट आ गया ना उसका, वो जरूरी है बीच में। अब वो जब कबूतर मुकम्मल होता है तो वो कबूतर फिर थकता नहीं है। और साथ साथ ये कि आप जब उड़ा रहे होते हैं ना, एक ब्रीड होती है, जब आप उड़ा रहे होते हैं आपको पता चल जाता है कि यार ये ब्रीड जो सी ना काम कर रही है, ये ना वो सबसे पहले है। तो वो क्या बॉडी होगी कि तो उससे कौन सी बॉडी लगे कि हमें पता हो कि यार ये कबूतर हमारा सही प्रॉपर बन गया है कि अब इसको हम उड़ाएंगे। तो मतलब डोपिंग की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है कि जी इन्हों मोटी वाल लाओ तो यार वो जब आप देखें तो कामरान normally बात बाद में कबूतर इसमें हाथ आप में ये हाथ में ये हाथ जो होता है ना, यही तो बात है ना, वो हाथ ये पे तो सबके कमाल हाथ है। ये देखना जब एक हड्डी तजर्बा हो जाता है। तजर्बा सांचा उन्हें सबसे पहले जेड खाने पता क्या क्या सांचा शागिर्दां ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, मैं आपको बताता हूँ, शागिर्द ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਭਈਆ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਲਿਜਾ असल में मैं बता देता हूँ, सिंपल बता दूं। देखिए ना, एक सिंपल बात बता थी दूं। बाबा सिकंदर साहब ने, हाँ बहुत बड़ी बात थी, किसी ने उस पर गौर नहीं किया, हमने उसका मजाक बना दिया। इंची टेप वाला। हाँ, हकीकत है। आप पूरी दुनिया में जितने भी शिकारी है ना, फैल्कन का, हॉक का, उकाब का, जो इससे शिकार करता है वो इंची टेप से नापते वो हैं, इंची टेप से नापते हैं बिल्कुल। घोड़े की हाइट को, घोड़े की लंबाई को, लेंथ को इंची टेप इंची से टेप से नापते हैं। नापते हैं। आपकी अपनी लेंथ जो है, आपकी कितनी हाइट है, 5 फुट 9 इंच, 5 फुट 11 इंच, 5 फुट 6 फुट, हम खुद भी उस चीज को यूज करते हैं। तो अच्छा, उन्होंने क्या कहा था, अब हाथ के सांचे की बात मैं कर रहा हूं। और मेरा उस्ताद है लोहार, एक गल है, वो बचपन तो उन्हें लोहा कुटिया है,
ਉਹ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਲੈ ਲਓ है, वो सारी जिंदगी होगी उन्हें लोया चुका, वो इतने इतने बड़े हाथ है उसके। अब उसका जो शागिर्द है मेरे वर्गा मम्मी डैडी आ गया तो मेरा प्यो सी सुनार, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ, ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰ ਔਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੱਥ ਹੈ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ 4 ਉਂਗਲ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ 4 ਉਂਗਲ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ 4 ਉਂगल है वे। क्योंकि एक स्ट्रक्चर का एक आखिर उस सांचे के भी तो कोई एक साइज मैं होगा आपको ना, बताता हूँ। उसको कैसे हम उसका मेंटेन कैसे कैसे बताएंगे लोगों को मैं कि यार आपको बताता ये होना चाहिए। हूँ। इसका जो वजूद होता है ना, वजूद हाथ में जो हार्ड होता है वजूद, बाज होता है कि आपकी जो उंगली है ना उसके वजूद में ना हल्की हल्की नरम नरम लगता है वजूद उसका। आपके हाथ में कबूतर है ना, आपकी ये चीजें ना पोटे, ये वजूद को जब लगते हैं ना तो नरम महसूस होता है। ठीक है, ठीक है, जो हार्ड वजूद का होगा ना कबूतर, जिसका सीना चौड़ा है, पीछे से बरीक कबूतर है, ठीक है, वो उतना ही हार्ड होगा। हाँ वो पकड़ने में गिरफ्त में फर्क आएगा। गिरफ्त में फर्क आएगा, वो हार्ड होगा जिस्म उसका। सही। ये बात नहीं है कि ये उड़ता तो हार्ड है, जो कबूतर अच्छा है ना उसका वजूद भी हार्ड होगा, जोड़ों में भी जो होगा उसका भी ऐसे होगा, अभी कभी जिंदगी में नहीं उड़ा होगा। उसका वजूद हार्ड होगा। बॉडी जो स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं वो सख्त होगा, जैसे उसकी ये पसली है ना, मसल ये जो मसल है, जो उसका नीचे वाला जो हड्डी वाला हिस्सा है, आप उसको पकड़ेंगे ना तो ये जब नरम होंगी ना तो आप पता लगे ये पोला है। सही। नरम है। और जो सख्त होगा उसके बच्चे के भी यही स्टाइल होगा। मेरे साहब आपका फेवरेट मौसम कौन सा? अच्छा जो कबूतरबाजी के अलावा वैसे कि भाई मुझे ये मौसम अच्छा लगा, मैं इसमें अपने आप को फ्रेश महसूस करता हूँ। मुझे गर्मियाँ पसंद है। गर्मी में आपके बॉडी और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होती है, तो ऐसे कबूतर भी तो हो सकता है हम सर्दियों में पकड़े तो वो बेचारा नरम हुआ। नहीं नहीं, ये कबूतरों में ऐसे नहीं है ना। नहीं नहीं, जानदार तो सारे ही ऐसे। नहीं, ये मैं आपको करते बता होंगे दूं, गर्मी आज सर्दी है ना, सर्दी अब मैं कबूतर आपको पकड़ाता हूँ, आप कहेंगे यार ये तो ऐसे जैसे बाजी के लिए तैयार है। वो तो वो फिजिकल फिट बैठा है कबूतर ही। वो तो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना। अब जो जोड़ों में एक्सरसाइज जो नहीं कर रहे, जोड़ों नहीं रहे, हाँ। उनकी बॉडी ऐसे जैसे तैयार है उड़ने के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, सर्दी है, ये फर्क आएगा। हाँ, ये फर्क है। आगे उनके बच्चे भी इस तरह निकलेंगे ना। अच्छा, दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा था कि जिन दोस्तों भाइयों को जो नए इस शौक में एंटर हुए हैं, जी जी ये उनके लिए आप कर रहे हैं ना, ताकि ये उनको भी पैगाम मिले। जी जी बिल्कुल, उनके बजाय वो अच्छे उस्तादों के शागिर्द तो पहले तो वो हो जाएं, ताकि उनको भी कुछ फन आ जाए। अगर वो नहीं हो रही है, वो समझना चाह रहे हैं कि यार कुछ ना कुछ हमें मालूमात मिले, तो जो गर्मी में कबूतर आगे परवाज देता है, मसलन उनका 2 बजे 3 बजे 2-3 बजे वाला गर्मी में अच्छा ही कबूतर होता है। अगर वो बैठ के तो ऐसे जैसे फ्रेश है, तब उनको ये तो पता लगे ये अच्छा कबूतर। ये बहुत अच्छा हो गया। जो आगे लम्मा पै गया है, पंजाबी च कहने हैं, उन्हें बेचारे ने तुसी उनका जोर भी लवाओगे ना किसी मसाले मसूले ना, उतो नहीं आएगा अगली बारी ਇੰਨੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ। बिल्कुल ये कि यही जनाब बात है। ਜੇ ਆਗੇ ਤੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਫਰੈਸ਼ ਹੈਗਾ ये क्या? हाँ ਔਰ ਆਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਔਰ ਖੁਰਾਕ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠਾਪਾ ਮਾਰੇ ਫਰੈਸ਼, ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਚ ਲੈ। बिल्कुल ऐसा। ਬਈ ਸਿੰਪਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਚ ਐਡੀ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये उनके लिए पैगाम। बाकी जो अच्छे सीनियर उस्ताद हैं उनको तो पता ही ये चीज होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो ये जज कर ले यार ये उड़ के आया है, इसको पता ही नहीं, वो अच्छे कबूतरों में शामिल होते हैं। ऐसे ही। तो अच्छे कबूतर ज़ाहिर है उसके लिए पहचान होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस है। मतलब ये शौक इतना नहीं है कि जनाब दड़बी से लाओ और शौक कर लो, ऐसे नहीं है। इस पे ठीक ठाक मेहनत दरकार है, अच्छे परिंदे दरकार हैं। और जो नीचे बैठा हुआ अच्छे परिंदे आपके पास हैं कामरान भाई, आपको उनको संभालना नहीं आता, क्या फायदा। परिंदे बेचारे तो वो तो गए ना, उनको आपने संभाले में मर जाएंगे। बिल्कुल। तो लिहाजा नीचे बैठा हुआ एक अच्छा जैकी होना चाहिए, तो फिर रिजल्ट आता है। बिल्कुल ऐसे। तो अब वो परिंदे की पहचान तो बताएं ना। जैसे खान साहब ने बता दिया, एक तो सांचे की वो छोटे भाई ने भी बात बता दी, हाँ रेशम। अच्छा, सबसे एक मुख्तसर बात, मैंने एक और भाई भी आए थे इंटरव्यू, खान साहब लेके आए थे, मैंने ने कहा जो नाड़ियाँ, नदीम भाई नहीं वो एक और आए थे ये खान भाई लेके, अच्छा। खान साहब लेके आए थे। अच्छा, मैंने उन्हें यही पैगाम दिया था जिनको नहीं इतना ज्यादा इन चक्करों में पड़ रहे, वो एक पार की पूंछल वाला कबूतर चाहे दड़बी से मिल जाए, चाहे किसी दोस्त से भी लेना है तो एक अच्छा ले ले। अव्वल तो जो दोस्त दे रहा है वो अच्छा ही दे दे, बिल्कुल सही। बजाय 10 देने के एक अच्छा दे दे। ठीक है। अगर उस बेचारे को नहीं पहचान, लेकिन वो एक चीज अगर वो पकड़ ले ना, दुम का एक पार होना चाहिए। अगर दुम का एक पार होगा ना, उसकी काफी चीजें ठीक होंगी। अगर दुम ज्यादा चौड़ी है, गंड उसकी ज्यादा चौड़ी है, तो उस कबूतर में काफी खराबियां आ जाएंगी।
लिहाजा उन दोस्तों के लिए यही पैगाम है कि वो एक पर का पूंछल का पर जो है ना कबूतर वो पसंद करें, उनको छोड़ें, उनका ही रिजल्ट आएगा। और ज़्यादा रॉकेट साइंस की तो ज़रूरत नहीं है। काफ़ी उस्ताद काफ़ी चीज़ों को उलझा देते हैं कि फलाने पॉइंट सब कुछ अपनी जगह दुरुस्त है। किसी उस्तादा की मैं वो दिलजारी या किसी की वो नहीं करता, लेकिन उन शौकीन के लिए जो बेचारे तरस रहे हैं कि यार हमें कोई सीखने को कुछ मिले, या वो सिर्फ एक पॉइंट मेरे पे छोड़, मैंने पहले इंटरव्यू में बताया, वो पूंछल का एक पर पकड़े, पूछल का एक पर आपने दे दिया, चपटी तीली का आपने दे दिया कि तीली चपटी होनी चाहिए, वो होगी। जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात एक ब्रीडिंग के हवाले से कि मादी परवाजी देखें, नर की मजबूती को देखें। तो ये मतलब ब्रीडिंग के लिए भी एक देखिए परवाजी कामरान भाई, परवाजी जो कबूतर है वो मजबूत ही होगा ना, हाँ तो बात तो वही आ गई। नहीं परवाजी से मुराद ये हो गया कि परवाजी कबूतर शॉर्ट भी हो सकता है। देखो मजबूती से मुराद उनका ये है कि वो अपने आप नहीं को, डूबना, अपने हवास बिल्कुल जो को, आवाज को बढ़ाना। तराकू जो सा होगा, जिसने समुद्र में गहराई में जाना ही नहीं है तो उसने कहाँ जाना है, जिसने गहराई में जाना है जाना तो उसी ने है। अच्छा मैं आपको इस पे भी एक बात कहूँ कि तैराक डूबता जरूर है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट डूबता है। हर तैराक नहीं डूबता। और मैं बुढ़ा हो गया, मैंने पता कि भाई मैं पार नहीं जा, फिर मैं कहूँगा मैंने तैरना आंदा, मैं जाऊंगा, गोल्ड मेडलिस्ट है पुराना, वो मैं हो नहीं नहीं सकता। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਚੱਲ। एक बात है ना ओवर कॉन्फिडेंस की और बात। बिल्कुल बिल्कुल कि ये हम अच्छा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बॉडी के लैंग्वेज के हिसाब से भी चेंज होती हैं कि मतलब कभी कभार हम जवान होके भी कॉन्फिडेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारी वो डाइट नहीं होती, हमारी वो चीजें नहीं होती, हमारे एंजाइम्स अंदर से वो जो है ना चल नहीं रहे होते, सारा निजाम जो है ना उस तरह का, तो हम कॉन्फिडेंट नहीं होते अपनी बात पे। लेकिन अगर हम प्रॉपर डाइट लेते हो, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, हम कुछ चीजों में खुद ब खुद कॉन्फिडेंस हमारी जो है ना आ जाती है। तो इसी तरह कबूतर को जब आप प्रैक्टिस करवाते हैं, हमारी फिरते चल रही प्रैक्टिस है, तो वो उनको एक प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस भी दे देते हैं। इनमें भी ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, ऐसी है जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखा के फारग हो जाते हैं। बस यही तो मसला है। तो ये चीज मेरा कहने का मकसद है कि वो जो कह रहे हैं ना मजबूती, वो कह रहे हैं कि वो ठंडे दिमाग का तसल्ली है, उसको वो पता होगा भाई मेरा पेट्रोल अब इतनी देर का रह गया, अब मैं नीचे की तरफ जाना शुरू कर दूं। मजबूती इसी का नाम है। देखो हर दिमाग तो हम इनका जज नहीं कर सकते, कितने तोले का होगा तो नहीं अक्लमंद होगा तो ये क्या ना, मेरा ख्याल है आंख से इतना ज्यादा सियान नहीं हम कह सकते। आंख तो जोन सी है, वो उसकी देखने की जो है बसारत की आंख उसका में है, लेकिन वो अगर कहें कि जी ये आंख ऐसे, ये आंख ऐसे। अच्छा मुझे बताया सियालकुटी कबूतर है बंद आंखों के जोन से, तो वो भी तो उड़ते हैं। हाँ उड़ जाती, तो बताएं उसमें कहाँ से रोशनी आती है? बिल्कुल ऐसी। मुझे ये बता दें मुझे। हर आंख स्याह हो जाती है आंख, आंख बिल्कुल ब्लैक है। वो कबूतर अंधेरे में बैठते हैं, वो कबूतर उड़ते भी बहुत ज्यादा है। उनमें सफेदी कहाँ से आ गई? मुझे चमक बताए ना, चमक कहाँ से फिर आ गई? हाँ वो तो अंधेरा है सिर्फ, अंधेरा है सिर्फ, ब्लैक है। तो ये यार लोगों को उलझाया हुआ है इसमें। आंख की मैं आपको बात मियां बताता साहब। हूँ, आंख में भी पॉइंट होते हैं, सही। ठीक है। असल में आंख इसकी क्या है, वो बिंदी है, जो नूर होता है ना बारीक सी बिंदी, वो उसकी आंख होती है। वो हर कबूतर में होती है, वो ही फोकस करती है आसमान से जमीन पर। उसके ऊपर होता है एक बारीक सा रिंग, वो फोकस करता है गहराई में। और इसमें भी क्वालिटी होती है, एक पुतली होती है वो मध्यम होती है, जो ऊपर जाते हैं वो वापस नहीं आते। एक पुतली होती है वो स्याह होती है, तिल जो है वो जो तिल आता है वो बहुत स्याह आता है, ऐसे लगता है कि जैसे हम गौर से देखें ना कि वैसे कुआं है। वो सबसे अच्छी बिंदी है, क्या बात। जो स्याह है। बाकी इसमें जमीन का होता है, 4 किस्म की ये छेपे होती है। नीचे जमीन देखनी है कौन से कलर की है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲकुल सही। जोड़े दी और लाइन होना दी। हाँ बड़ी देखो परफेक्ट बात है। इसके एक जमीन होती है, जमीन के ऊपर एक दायरा होता है, ठीक है। ये 4 किस्म की चीजें होती है, बिंदी, उसके ऊपर रिंग, उसके बाद आता है ऊपर गोल दायरा, सूरख में हो, किसी भी कलर में हो, ठीक है। उसकी जमीन देखनी है, जमीन पर कोई नहीं जाता कि यार जमीन किस कलर की है, ये बात, ठीक है। इसके ऊपर दायरा, इसका क्या काम है। ये पलक होती है, पलक भी 2-3 किस्म की होती है। सबसे अच्छी पलक है ब्रीक, जो फिर दायरा के साथ साथ चलती है, या उसके बाद नजर नहीं आती। हाँ जी। बिल्कुल हाँ सही। जो ये मोटी पलक वाले होते हैं ना, ये तो होता है रोड गोल्ड होते हैं, इसको चलाना पड़ता है। जो ब्रीक पलक वाले होते हैं ना, वो ज्यादा जल्दी चलते इंगरी हैं, तारी वाली जो हाँ, होती मैं है समझ गया, ना वो बिल्कुल सबसे अच्छी बारीक, है। हाँ। ठीक है। हम सांचे की बात करते हैं ना, सांचा इनों का भी बहुत अच्छा है। जैसे कासद कबूतर होते हैं, इनों हमारे फर्क क्या सांचे में
जो असील कबूतर और इसका टोली वाले कबूतरों का फर्क ये है कि हमारे कबूतरों के जो सांचे के साथ पर है ना वो बड़े क्वालिटी वाले होते हैं। मतलब एक रेसर कबूतर है, उनके पर और हैं, उनों के सांचे पर उनके भी छोटे अच्छे होते हैं, गोल पर होते हैं, हाँ जी। लेकिन वजूद उनों का अच्छा होता है। वजूद बहुत अच्छा होता है, चौड़ी छाती बंद तो अगर हम अपने कबूतरों का सांचा लेना, सांचे के अलावा पर भी बहुत अच्छे होने चाहिए। सही। पर के सलाद वजूद बड़ा अच्छा होना चाहिए। उनों का पैरों का खिलार होना चाहिए, पंजों का खिलार, पंजों में कलर कौन से चलने चाहिए, सुरख होने चाहिए। जो हल्के पंजे वाले वो ज्यादा जोर लगता है तो गिर पड़ते हैं। ठीक है, गुलाबी पंजे वाले। देखो जोड़ होते हैं, जोड़ों में भी 4 क्वालिटी है। हड्डी है ना, हड्डी गोल है, हड्डी गोल में भी 4 क्वालिटी है। सही है। एक हड्डी गोल आती है, पीछे सीधी हो जाती है। जो उस दिन हम बात कर रहे थे। ठीक है, एक हड्डी आती है लचकदार, हम अगर हाथ फेरते हैं ना पीछे लचक होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए। एक हड्डी थी बिल्कुल अंदर। एक होती है, हम उस दिन बात कर रहे थे, टिक जैसे गुड का निशान है, इस तरह से। वो गुड जब हड्डी। गुड हड्डी होती है ना, हाँ। हड्डी के जो हम तो आगे गुड देख लेते हैं, हाँ। जो पिछले हिस्सा वो बड़ा मेंट करता है, वो क्या था, पीछे लचक होनी चाहिए। जिसकी ज्यादा लचक होगी उतना क्वालिटी वाला होगा। और असल हड्डी के पीछे की लचक है वो, जो हम उसको नरमी जो देखनी है। सांचा वही आ जाता वो है देखो, यार, आपका हाथ का सांचा ही है। बिल्कुल ऐसे। वो तो वो प्रैक्टिकल कर करके फिर ये हड्डी जितनी अंदर जाएगी ना, इस तरह आगे गुड़ से जितनी अंदर गुलाई में जाएगी ना, उतना गर्मी में अच्छा। अच्छा काम करेगा। हाँ। ठीक है, जोड़ों की भी किस्में होती हैं। ठीक है, जोड़ लंबे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, इनों में भी क्वालिटी होती है। हाँ, ऊपर भी होते हैं, नीचे चुभवा भी होते हैं, बारीक साख्त के भी होते हैं, मोटी साख्त के भी। गोल शेप के भी गोल होते भी, हैं, हाँ। इनों में भी क्वालिटी है। ये हम कहते हैं मजबूती के लामत। लोग कहते हैं ना आंखों में, आंख के साथ जोड़ों में भी मजबूती की लामत। जोड़ का बड़ा जोड़ों की अलग है। बनावट में भी फर्क है। हाँ जी। जो इस तरह है, कोई हाँ इस जी। तरह से बंद हो रहे हैं, सही है। कोई दबवा इस तरह, कोई अंदर की तरफ होते अंदर हैं, को हो जाता है। ये कबूतर के साथ हम खाली ये नहीं देखते यार, कबूतर मुलायम ही बड़ा है। बाद लोग कहते हैं जी कबूतर किस वजह से गिरते हैं। कबूतर की एक वजह नहीं थी गिरने की, कई होती है। कई वजूहत है। कई परों से गिरते हैं, कोई वजूद से गिरते हैं, कोई जोड़ से गिर जाता है, कोई जोड़ से गिर जाता है, सही है। मुख्तलिफ किस्म, कोई पंजे से भी गिरता है। अब हम कहते हैं कि जोड़ों में वो कबूतर होना चाहिए जिसकी हर चीजें मुकम्मल होनी चाहिए। उड़ने में चौड़ी दुम्मी उड़ जाती है, दरमियाने पर भी उड़ जाते हैं। ठीक अच्छा, है, आपने कहा 12 बजे वाला शाम तक चला जाता है, गोली से उड़ जाता है। हाँ। उड़ने वो की भी जाता है। गेम और है। जोड़ों की गेम और है। कम से कम जोड़े में कबूतर मुकम्मल होनी चाहिए। उसकी आंख, पर, वजूद, दुम, पैरों का खिलार, हर चीज एक जैसी होनी चाहिए। अब ये पता होगा तो वो डालेंगे ना। एक लाल आंखों वाले उस्ताद, मेरे इतनी देर से मैं सोच रहा हूँ, उनका नाम नहीं मेरे ज़हन में आ रहा है। ये इधर टलाई वाले, क्या नाम था उनका? आसिफ टलाइया। आसिफ टलाइया। उनका एक शागिर्द मुझे मिला था, उन्होंने मेरे एक कबूतरी देखी थी, वो बड़ी लोगों को पसंद आती है। लेकिन उसने मुझसे बात की, कह रहा आपकी कबूतरी में एक फॉल्ट में, क्या कहते हैं, इसकी उंगलियां छोटी हैं पैरों की। मैं कहा यार ये पॉइंट में नहीं, वो अनकरीजा जब बच्चा पलता है ना, हाँ। पलाई में ये फर्क आ जाता है। होता वो नस्ली है, हाँ। होता वो नस्ली कह रहे है। हैं इसके- नहीं, वो जो पंजे मुंगे छोटे हैं, नहीं वो मैं समझ गया उसकी बात। वो होता वो नस्ली है, उसके बहन भाई शामा तक उड़े होंगे, एक आपने वो काट लिया, वो जरा था वो कमजोर, यार ये उड़ नहीं सकता, तो वो जोड़े में काम आ जाएगी, उसको गोल करके अच्छा, छोड़। नॉर्मली वो सबको पसंद आई। उसने बस वो एक पंजे पॉइंट का। निकाला उसने कि वो भी पंजे का, और खड़ी भी मादी की तस्वीर थी। कहते इसकी उंगलियां छोटी हैं, उंगलियां इसकी थोड़ी लंबी होनी चाहिए, अच्छा खिलार होता होना है चाहिए। जब आप जब जोड़े लगाते हैं, अक्सर बच्चे भी छोटी उंगली को वो लगाते हैं। अब भाई ने जो बात की, हर चीज मुकम्मल होनी चाहिए जोड़े में, हाँ, सही, बड़ी हर चीज पूरी होनी चाहिए, तो फिर आगे अच्छे ज्यादा निकलेंगे। बिल्कुल सही, वो छोटे पंजे वाली ना, उसमें फिर हल्के भी निकलेंगे। बिल्कुल सही। ये पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब ये जेड खान साहब आपकी छत पर शौक करेंगे, जैसे कि स्टार्ट में भी मैंने बताया। जी तो आप दोनों मिलके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मिल के शो करेंगे, और ये एक मिसाल होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। देखो, एक और एक 11 होते हैं, बिल्कुल ऐसी, ठीक है ना। अकेला बंदा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। पहले भी मैं और ये मेरा छोटा भाई हमारे साथ शो कर रहे थे, ये भी कर रहा था, इकट्ठे शो करते हैं। इकट्ठे ही शो कर रहे थे। लेकिन ये है कि शौक पहले भी अच्छा था, पहले भी बड़ा अच्छा चल रहा अब था, सोने पे सुहागा होगा। अब सोने पे सुहागा हो। ठीक है कि नहीं? अगर किस टाइम मैं बिजी हूँ, क्योंकि देखें हम प्रोफेशनल तो है नहीं है, शो जिम्मेदारियां हम पे भी हैं। किसी टाइम मैं मसरूफ हो गया, चलो खान साहब बैठे हैं छत पे, किसी टाइम खान साहब मसरूफ हो गए, नवीद भाई तो हैं, मैं आप बैठा हूँ, ये हैं, नवीद है, ये हम 3 बंदे हैं जो हाँ, मेन, वो हैं। और छोटा भाई एक और है, मियां मुजीब साहब।
मियां मुजीब साहब जो है ना छत पे इनका काम ये है कि सिर्फ कंट्रोल करना, हाँ छत मेंटेन। किसी टाइम नवीद भी कहीं काम गया, मैं भी गया, वो भाई जरूर है, मस्ट आएगा छत पे ही। सही, मतलब अब तो अब एक चार चांद एक और लग गया ना। अब खान साहब जो है ना, क्योंकि इन्होंने अपने घर से आना, ये तो घर के बंदे हैं ना तीन, खान साहब ने घर से आना है, तो आगे इन्होंने यहाँ पे शो करना है। अगर ये नहीं अब आता, चार चांद पूरे हो गए। चार चंद पूरे, चलो चार चंद लग गए जी। हूं ऐसे मतलब खान साहब के आने नाल चार चंद लग गए। अच्छा, एक चीज इसमें बता दें, वैसे बात में कुछ और कर रहा था, वो अभी चूंकि ऐलान, क्योंकि ठीक अच्छा हो गया, 279 लोग हैं जो हमें इस वक्त मियां साहब के फोन से मैं देख रहा हूँ, जो हमें देख रहे हैं, तो माशाल्लाह लाहौर काफी हमें देख रहा है इस वक्त, और दुनिया भी काफी देख रही है। तो एक चीज, अब चूंकि अब आपने बाकायदा एक ऐलान के तौर पे ये बात कर दी, तो उसमें क्लियर ये कर दें कि क्या अगर मैंने ज़ैड खान से बाजी खेलनी है तो ज़ैड खान के नाम से भी लिखी जाएगी, तो वो भी इसी छत पर होगी, और जो मियां नदीम के नाम से लिखी जाएगी वो भी इसी छत, यानी कि ये छत अब आप दोनों के नाम से एक हो जैसे गई। हम टूर्नामेंट में हमने एंट्री दी है ना, जेड खान छत मियां नदीम वकीलों में, सही हो गया, ये ही रहना। ये ऐसे दोनों नाम साथ रहेंगे। माशाल्लाह एक इनका अपना भी नाम है, मुकाम है। हाँ, मैंने कहा ये कंफर्म होना चाहिए लोगों को, कई लोग कहेंगे तू अपनी छत ले गया, तू फलानी छत ले गया, तो उन्हें पता होना चाहिए कि भाई ज़ैड खान ने अब छत, यही छत ज़ैड खान की हाँ छत। जी, यही छत इनकी है, और मसलन जेड खान छत मियां नदीम वकीलों में। हाँ, पीछे 2-3 टूर्नामेंट हम लोग आए हैं, तो इसी तरह ये इसका मकसद ये होगा कि यार ये इनका भी एक नाम है, हाँ बिल्कुल, वो ये नाम जिंदा ही रहे, इंशाल्लाह। चलता ही रहे जब तक जिंदगी। हाँ, अगर कोई छत इन्होंने कोई अपनी और बना ली है तब तक, वो तो तब किताब है ना, तब है। फिल वक्त ये है फिर कि- वक्त ये हम इकट्ठे कर रहे हैं, हाँ, और अल्लाह करते आप रहेंगे इंशाल्लाह। इत्तेफाक और इत्तेहाद जो है कायम नहीं नहीं, रखे। इंशाल्लाह ये आप देखेंगे ये मिसाल होगी। इंशाल्लाह जरूर ये मिसाल होगी, क्योंकि मियां साहब जो है ना बड़े ओपन माइंड के बंदे हैं। जो ओपन माइंड जिनका हो ना, उनके साथ बड़ा अच्छा सिलसिला चलता है, बिल्कुल ऐसी, तो बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि माइंड दोनों के मिलते हैं। बिल्कुल ऐसी। और खराबी तो वहां पैदा होती है ना कि जब माइंड ना मिल रहे हो, तो बड़ा अच्छा शौक देखने को मिलेगा। तो अब ये जो ज़ैड खान साहब इस छत पे आए, तो आपकी फीलिंग्स में कोई फर्क, एक तो आगे ना कि ये आगे तो ये हो गया, ये भी हो गया, ये हम 4 हो गए, फलां हो गया, तो आप क्या देख रहे हैं कि ज़ैड खान के आने से परफॉर्मेंस पे किस किस्म का फर्क आपके पड़ सकता है? ये ऑब्वियसली 100% ये रिजल्ट जो है ना 100% आ जाएगा इंशाल्लाह। जो 70, 78, 90 तक मेरा 78-90 चल रहा था, उसकी खास वजह ये थी कि मेरे पे जिम्मेदारियां बहुत काम हैं। मसरूफियात भी मेरी मसरूफियात जिम्मेदारा भी है मेरा, और वो भी दूर, मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है। उसकी वजह से ये जो 70 वाला काम है ना, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद अल्लाह के घर कि ये 95 से 100 तक जो जाएगा इंशाल्लाह, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो इससे ये हो जाएगा कि ये समझ लें कि आप जो थोड़ी सी अगर कमी थी ना मेरी छत पे, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी। अच्छा, आप दोनों की पार्टी सेम है? सेम पार्टी है, पार्टी हम आपकी रियाज है? पार्टी रियाज पार्टी। पार्टी से हम और आपकी जो मद्दे मुकाबला है वो है उस्ताद बाउश शम्स पार्टी। शम्स पार्टी है। और आप लोगों की दफों की तो बाजियां ऑब्वियसली लगती हैं, हाँ जी, कट की बाजी, कट की जिसको कहते हैं, दफ की बाजी जो है, कट की बाजी होती है। उसके अलावा आपकी थड़े की भी बाजियां आपकी होती होंगी, वो सारे लोर में उड़ती हैं। हाँ, हर कुछ साल ना कुछ उड़ती तो हैं। आपकी होंगी ना, जो लगती होंगी, मुख्तलिफ मुखालिफ ऐसे होंगे जिनसे थड़े हाँ की जी भी लगती बिल्कुल। हमारे तकरीबन सारे लोर से हमारा शौक होता है, हमारी दफ के अलावा। हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपने मुखालफिन में या मद्दे मुकाबले है तो वो भी काबिल एहतराम, काबिल इज्जत, एक प्लेयर ऐसा होता है जिसके साथ बड़ा मजा आता है मुकाबला करने का, या जिससे आपको लगता है कि यार ए भी जीत सकता है, तो बहुत अड़ फंस के मुकाबले आपको ज्यादा यार याद याद है है। बड़े बड़े अच्छे उस्ताद और सीनियर उस्ताद और अच्छे शो करने, जैसे मत मारे हैं, ये हमारे लोर के बड़े अच्छे और मुल्ला है अजहर क्लब वाला भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, इनसे शो करने से मजा आता है, हारते भी है जीते भी है, ये तो गेम का हिस्सा है ना। और भी काफी है, मसलन चेयरमैन पार्टी के अच्छे जैसे मियां अहमद साहब हैं, इस साल पिछले साल माशाल्लाह वो गेट चैंपियन हुए इस साल ही बल्कि। तो इस तरह असलम मंडियाला जैसे उनके पार्टी के प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं। सुहेल खान साहब की छत पे हमेशा मुंसब ही आपका जाता है।
सुहेल खान साहब की हमारी वो कट की बाजी होती है, कट की बाजी होती है, कट लेकिन की बाजी है। मूसम उनका हमारी तरफ आता है, काफी सालों से आ रहा है। हाँ। और सुहेल खान साहब भी अच्छे प्लेयर हैं, उनका भी एक अच्छा, वो तो हमारी एक सामने बैठते हैं ना, बिल्कुल। तो वो कट की बाजी उनसे। वैसे ओवरऑल जो चेयरमैन पार्टी के भी अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें देखे ना मंडियाला भी आ गए चेयरमैन की, अपनी छत बहुत अच्छी है, मजबूत काफी अच्छा मजबूत छत, अच्छा रिजल्ट आता है उनका। फिर एक अच्छी छत उन्होंने एक नई की है, वो जो है अपना जो चेयरमैन का शागिर्द है, अपना क्या नाम उसका, चंद्राय वाला, हैदर जोया, एक बहुत अच्छी छत उन्होंने नई तैयार की है, वो उसका भी अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह। अभी नई छत है उनकी, हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल और हो जाएगी। तो इसमें उसके बाद चोई सखी की राणा कुकू साहब की माशाल्लाह क्या बात, बहुत जबरदस्त छत है, हाँ, बड़ी छत। उड़ते वो सिर्फ जेठ ही है। इस तरह उनकी अपना चोई सखी पार्टी में एक अपना सलाउद्दीन है, वो भी उनकी एक अच्छी छत है। सुहेल खान साहब की हो गई। छतें तो यूं आप लाहौर की पूरी गिनवा लेंगे, कोई हाँ, एक छतें। ऐसा बताएं कि जिसके साथ आपको लगता हो कि हर दफा इसके साथ अड़फस होती है, या कोई यादगार मुकाबला आपका हुआ हो, यादगार मुकाबला कोई हुआ हो, कोई अड़फस हुई हो। वो मत मारे मत मारे। एक बार हुई। हाँ, एक बार 2015 में ना बड़ी अड़फस हुई है, उसमें मत मारो ने तकरीबन टोटल से जीत गए हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरे थले आ रहे हैं। अच्छा। ये भी एक याद 40 है। छत से जीते सातवीं बार। थे, एक हमारी छत से आ रहे थे। 40 छतों को उन्होंने विन किया था, क्या बात। तो 41वीं मेरी थी, बल्कि उन्होंने रसाले में भी दिया कि हम टोटल हमने विन किया, लेकिन वो सिर्फ मेरी छत से हुआ है 2015 में। अच्छा। तो वो मुकाबला बड़ा टफ था, यादगार। उनके बड़े अच्छे यादगार, उनके बड़े अच्छे मुझे कबूतर लगता है उड़े इस थे। दफा तो बड़े ही यादगार मुकाबले आएंगे आपसे। हाँ जी। तो मुल्ला जो है, मुल्ला जो हमारा रीफ है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है और अच्छा शौकीन है। अजहर क्लब वाला बहुत अच्छा खिलाड़ी है। ये वो खिलाड़ियों के नाम बता रहा हूँ जो अच्छा शो करते हैं, सही। इनका सारे लोर से शौक होता है। अच्छा मियां साहब, एक बात आपसे पूछनी है ना, आपने इतने खिलाड़ी गिनवा दिए, इतना पुराना आपने शौक गिनवा दिया, जेडे खान साहब ने भी गिनवा दिया, एक तंजिया बात कर रहा हूँ और लेकिन आपके साथ खुल नहीं के कर रहा। करें। वैसे एक सोशली तंजिया बात करो, सीनियर और जूनियर का फर्क कैसे आता है? क्या सीनियर उस्ताद है, ये जूनियर उस्ताद है? ये कोई फर्क इसको आप, जिसने लेकिन आप काफी सारे जेड खेले हो। तो आप जूनियर उस्ताद हैं कि सीनियर उस्ताद नहीं, मैं तो जूनियर हूँ। हैं? ये एक फर्क हम कैसे काउंट करेंगे? ऐसे कि मैंने मैंने अगर देखा जेड कि उठाए ना हमारे 10, यहाँ मैंने 10 जेड उठाए ना, देखें वो सोशल इम्पैक्ट में सिर्फ एक चाह रहा हूं कि एक चेंज हो इंसान का। हमने अक्सर जगहों पे देखा है कि पुराने प्लेयर को जो है वो पीछे उसकी करते हैं। एक सीट दूर होती है, एक नए प्लेयर की सीट बहुत आगे निकल जाती है। तो सीनियर जूनियर का फर्क तो वहां खत्म हो गया। नहीं जो देखे ना पुराने उस्ताद हैं, बहुत पुराने, अच्छा उन्होंने जेड नहीं भी खेले। नहीं, वो तो एक है ना सीनियर है, अब चॉइस साहब है, अब वो नहीं खेलते, लेकिन हमारे लाहौर की पहचान है, हमारा एहतराम हमारे ऊपर वाजिब है, हम उनका एहतराम करते हैं, बुजुर्ग भी है। उनको तो हमने नाम पहले ले लिया, अब मेरा नाम पहले आ गया, आपका नाम बाद में आ गया। अच्छा, नाम आगे पीछे होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें सीनियरिटी तो नहीं कहीं नजर आती ना, जूनियर पान या सीनियर। शौकीन ने पता कितने जेड खेलने हैं आपको पता है? नहीं, मैं एक बात अब वो करूं, अगर नहीं खेल रहे, लेकिन वो हमारा नाम, हमारा फखर तो है ना। फखर हमारे लाहौर का फखर है। इसी तरह हमारे कई असातिज़े ऐसे हैं जो हमारे लाहौर का फखर है, हम उनको वो तो 110%, 200% बल्कि आप कह लें वो तो सीनियर हो गए। मैं कह रहा हूं कि आप और मैं बैठे हैं, मुझे पहले बुला लिया या मुझे स्टेज पे बिठा दिया, आपको नीचे बिठा दिया या मैं नीचे बैठ गया, तो इसमें हम किस चीज की अकाउंटेबिलिटी करते हैं, हम किस तरह से सीनियर जूनियर का फर्क निकालते हैं? देखिए, एक तो मुझसे कोई बड़ा होगा, मैं उसका एहतराम करूंगा। मैं मेरी तो बात छोटे ये है, आप छोटे ना, आपको कहेंगे यार ये एक सीनियर उस्ताद है, आप यहाँ से उठ जाए, मैं उठ जाऊंगा खुशी से। क्यों? लेकिन लेकिन आपसे बड़े भी हैं। लेकिन अगर हम किसी बुजुर्ग उस्ताद को कहें भैन तुसी उत्थे बह जाओ, तो फलाने ਨੂੰ कह दिया ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। यार ਜਦੋਂ जिन्हें अच्छे रिजल्ट दिखाए होंगे ना सीनियर उस्ताद हैं, 20 25 जेड खेडे होंगे, ਤੇ मैं 10 जेड खेडे ने यार, मेरे तो वो सीनियर अब है। रिजल्ट की अगर हम सिर्फ रिजल्ट को रिजल्ट देखें, नहीं, जेड खेले, सिर्फ जेड खेले, दिल चाहे लगी वो- भी तो है ना। यार जेड ना ही जीते हो, मैं ये खेले ने ना उन्हें। ये बात कर मैं ये कह रहा हूँ अगर उसने 25 जेड खेले, चाहे उसका कोई रिजल्ट नहीं। मैं 3 ਖੇਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 5 ਖੇਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਗੱਲ। चलो यार अलग को चलो जी। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ मेरे मुंह से निकलवाना तुमने। नहीं, मैं नहीं, मेरे प्यार मुंह से से तो जनरली बात कर रहा हूं मैं।
कि मैंने ये एक सोशल बात है ये एक सोशल कि कुछ उस्ताद अक्सर मुझे मैसेज आते हैं भाईजान आप फला फला नाम बड़े हैं आप उनके इंटरव्यू ले लेते हैं छोटे नामों के नहीं लेते कई लोगों के हालांकि मेरे 2,500 के करीब वीडियो हो गए हाँ, कर यूट्यूब रहे हैं। जिसमें मेरे छोटे उस्ताद अब छोटे उस्ताद क्या है ये नहीं मुझे समझ आई समझ रहे हैं आप बात छोटे उस्ताद हम किस चीज से काउंट करते हैं बड़ी छत से बड़ी छत से हाँ बात ये कामरान बात तो ये ना कि जिसने एक छोटे पैमाने पे शौक किया हुआ है वो पहली बात तो ये है कि वो आपको बुलाएगा आपके पास टाइम नहीं होगा बड़ी छत है मेन है पता है उसमें वसाइल है हर चीज है वसाइल से आप वसाइल से आप जो रिजल्ट से नहीं रिजल्ट से नहीं कोई काउंट करता रिजल्ट से या खिदमात से खिदमत मैं तो इस चीज हमारा इफेक्ट है इधर अब ये तो लाहौर का एक नहीं, चल रहा लाहौर है का नहीं, लाहौर में तो ये चल रहा है सोशल एक चल रहा है हर जगह ही चल रहा है हर जगह का ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रहा मैं एक सोशल बात कर रहा हूँ कि ये हर जगह हमें देखने को मिलता है इस अंसर को कम करने के लिए अगर हम अपने कुछ सीनियर असातिज़ा जिनको हम भूल गए मैं तो यही कहूंगा कि हम भूल गए हैं वो आते जरूर है अगला बंदा साडा तारफ करा रहा इन्हों जानते हो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾ लेकिन वो बंदा गुमनाम हो गया ये मीडिया का दौर अब उनको आया हम किस जनाब तरह लेके आए बाहर अब मीडिया का दौर अब आया अब मुतारफ हुए कौन उड़ा रहा कौन नहीं अब जो पुराने उस्ताद हैं वो छोड़ भी चुके हैं तब मीडिया का दौर नहीं था तो तारफ फिर हम नहीं कराना ना यार ये वो उस्ताद है जो अब मियाँ गुलाम सैन ट्रंको वाले जो इमरान भाई के उस्ताद हैं हाँ जी तब मीडिया नहीं था जब वो जो छोड़ गए 40 साल उन्होंने जेठ उड़ाया अब मीडिया में उनका कोई मुतारफ ही नहीं लेकिन वो हयात तो है ना हयात हैं बुजुर्ग हैं वो अब वो एक सीनियर उस्ताद है लेकिन वो नजर नहीं आते ना, वो नजर नहीं आते क्यों अब मीडिया भी अब आ रहा है ना नहीं वो कट बीमार रहते हैं वो बीमार रहते हैं उनकी एक एज दो दफा मैंने उनको देखा 85 प्लस उनकी एज है वो एज का भी हिसाब है ना अब मुझे बताओ अब जो नए उस्ताद जो अब शो कर रहे हैं अब मीडिया भी आ गया तो अच्छा रिजल्ट जिनका आ रहा है अब आप जा रहे हैं ना बड़ी बड़ी छतों पे जा रहे हैं आप उनका इंटरव्यू भी ले रहे हैं वो बता रहे हैं हम 10 साल से खेल रहे हैं हमारा ये रिजल्ट है या अब जो उससे पहले जो उस्ताद हैं अब नई नस्ल को तो पता ही नहीं है जब तक आप इंटरव्यू नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा या उन न्यू जनरेशन को कैसे पता चलेगा बिल्कुल ऐसी ये बात है लेकिन हम ये समझते हैं कि जो पुराना उस्ताद है ना जो सीनियर जिसने हम तो उनको ही सीनियर समझते हैं बिल्कुल सही जब ये कह रहे हैं ना कि जो जिसके पास पैसे ज्यादा हैं बड़ी बड़ी छतें हैं वो आप कहते हैं ये बड़ी छत है उसको हम बड़ी छत नहीं कहेंगे या सीनियर उस्ताद नहीं कहेंगे जो जिसने ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाई हमारे लाहौर में या पुराना जो खेल रहा हम उसको ही सीनियर कहेंगे बिल्कुल सही बाकी भेड़ चाल है तो वो चल रही है वो तो चलने ना उसमें तो चलिए आप अल्लाह करे बेहतर हो ये भेड़ चाल हम तो यही दुआ करते हैं आप खत्म आपने करना मीडिया ने खत्म हम तो करना है करते हैं सर हम तो कोशिश करते मीडिया हैं ने ये लेकिन हम खत्म क्या करना है करें देखो जो दावत देता है ना ये उन्हों के काम है जो मोहरी होता है ना हमारे ग्रुप या किसी का ये उन्हों के काम है जो पुराने उस्ताद है ना उनसे रब्ता कराएं उनको मुतारफ कराएं सही फिर इन्हों की नई वजह से जनरेशन को पता लगेगा ना आगे शौक चल रहा है ये है कि जैसे 2019 है 21 है 2021 में जो उस्ताद आए जो सीनियर है उन्हों के नाम आ गए थे जो 2020 के हैं वो पीछे आ जाते हैं बिल्कुल जिसका मौके पर परफॉर्मेंस अच्छी है वो आगे आते हैं उसको तो वैसे हम देते हैं ना रिस्पेक्ट देनी भी चाहिए वो चैंपियन देनी चाहिए। इसी तरह शौक बढ़ता है जी बात हाँ अगर उनको हम रिस्पॉन्स करते हैं तो वो इसी तरह शौक आगे बढ़ता है कि चलो इसी कल आज अगर हम आ रहे हैं कल हम जीतेंगे इसी इंसान की कोशिश बढ़ती है कि कल हम जीतेंगे हम भी आगे आएंगे बिल्कुल ऐसी अच्छा जी अभी बहुत जबरदस्त बातें हुई हैं जी जिसमें बहुत मेन जो पॉइंट उस्ताद मियां नदीम साहब ने कहा एक पत्ते की दुम होनी चाहिए और ज़ैड खान साहब ने कहा कि जी तीली जो है चपटी होनी चाहिए और बड़ा जबरदस्त पॉइंट जो मियां नवीद साहब ने दिया कि जी परवाजी मादा और मजबूत जो है कबूतर हो तो अच्छा जोड़ा बन सकता है और अच्छे कबूतर आप बना सकते हैं तो हम चलते हैं मियां साहब के कबूतरों की तरफ कि मियां साहब कोई कबूतर तो हमें दिखाए ना कि हम इस इंटरव्यू की तरफ जो जा रहे हैं उसको आगे लेके गए हम पहुंचे किस तरह के कबूतर हैं ज़ैड खान साहब आपने देखे हैं आखिर बड़े अच्छे कबूतर हैं मियां साहब के पास मियां साहब ने बड़ी मेंटेनेंस की हुई है आप साथ चले जाए ना वो 2-3 कबूतर जो होंगे इकट्ठे एक ही दफा इतनी दूर से लाने पड़ेंगे मेंटेनेंस मियां साहब ने बड़ी अच्छी की हुई है मैंने देखे हैं मियां साहब के कबूतर और इंशाल्लाह आगे से मजीद और बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह नुमान तो उस चेयर पे आ जाओ मैं इधर आ जाऊँ मेरा ये मैं इधर हूँ
नहीं आएगा सामने। उस सूरज में तो दिखाएंगे, सूरज बैक पे कर रहा यूं आएगा। जो सियासत चल रही है ना यार, ये नहीं होनी चाहिए। ये खुदारा इस सियासत को ख़त्म कर दें। जो बात तो मैं कहना नहीं चाह रहा था वो नवीद साहब ने कह दी है कि जो हमारे मोरी जो से ना, जो पार्टियों के लीडर होते हैं, ये उनके काम होते हैं कि किसको ऊपर लाना है, किसको नीचे लाना है। ये अब मैं ये कह दूंगा ना तो ये सब मेरे जो से ना वो कहेंगे फिर ये बोल रहा है, तो खुद ही खुदारा जो से ना सियासत को ख़त्म कर दे। जो शौकीन हैं, अच्छे प्लेयर हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, उसकी रिस्पेक्ट बड़ी ज़रूरी है। रिस्पेक्ट होनी चाहिए। रिस्पेक्ट होनी खिलाड़ियों को चाहिए, साथ रखना चाहिए। बिल्कुल। सीनियर खिलाड़ियों को साथ रखना चाहिए, सबको पता चले या ये ग्रुप है, क्योंकि ये सीनियर खिलाड़ी हैं, ये आगे आते हैं हर साल। सही होगा। ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कभी किसी को बुला लिया, कभी किसी को बुला लिया। ग्रुप का तब भी पता चलता है, हर बंदे के ज़हन में आता है यार ये सीनियर खिलाड़ी है, ये हमेशा आगे आते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, एक टेक्निकल बात भी बताए ना जी। हमारे यहाँ होता है कि छत हम किसको काउंट करेंगे? अब ये आपके पिंजरे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये है जो परवाजी छत, जोड़े आपके वहाँ हैं, एक खुदा आप उसको आप जो भी नाम दें, हॉस्पिटल कहें, जो भी कहें वहाँ पे। तो आपके इस छत पे कहीं भी कबूतर बैठेगा वैलिड है या सिर्फ इस एरिया में वैलिड है? नहीं नहीं, पूरी छत नहीं, ये छत है, एक बाउंड्री है, एक बाउंड्री वॉल है, ओपन तो नहीं है। नहीं, ये छत के अंदर अंदर ही या इनका गेट भी इस छत में शुमार होगा? नहीं, सिर्फ छत जो है जिसको परिंदे हैं वो छत काउंट करती है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं 100 फुट छत के दायरे में देता वो हूँ 100 आपको, फुट जो होता है ना वो टॉप होती है, वो जो टाप वो देंगे टॉप है। अगर वो हम आपकी कहाँ छत से के काउंट ऊपर करेंगे? आपकी देखें छत अगर ऊंची है ना तो कोई टॉप नहीं है आपके पास। छत अगर आपकी जमीन पे है ना तो आपके पास ऊंची बिल्डिंग है, वो 100 फुट के अंदर आप टॉप एक देख सकते हैं। अब ये यहाँ है ना, यहाँ से ये तार है 100 ये वो फुट में तार तो बहुत दूर है। एक बात कर रहा हूँ, मिसाल ले रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी 100 फुट में ये तार आ रहे हैं, या 100 फुट से 1-2 फुट 10 फुट आगे पीछे होंगे, ये तार मैं इनको दे रहा हूँ कि ये 100 फुट के दायरे में ये ले सकते हैं टॉप। तो अब एक कबूतर उधर जाके बैठा है, तो हम उसकी काउंटिंग जो है फुट की कहाँ से करेंगे? पिंजरे से करेंगे कि छत की बाउंड्री से करेंगे कि इनके घर की दीवार से करेंगे? वो तो ये जो बाउंड्री है, जो पिंजरे की बाउंड्री है, उससे काउंटिंग होती है। पिंजरे से तो नहीं होगी ना, वो जब छत कहलाएगी तो फिर ये दीवार से होगी। छत की बाउंड्री है ना, इस दीवार से होगी। बाउंड्री है, हाँ, इससे काउंटिंग होगी। दीवार से होगी, घर की दीवार से नहीं, नहीं, जो घर की दीवार है ना, बाहर वाली दीवार से नहीं, छत की नहीं जी, छत की जी दीवार है, छत की दीवार से इस तरह दीवार है जो साडी नीचे जो बनेरा इधर भी कबूतर बैठ जाएगा वो वैलिड है। नहीं, नहीं घर के अंदर थल्ले valid नहीं होता है। वैलिड है, थल्ले वैलिड नहीं होना। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਹੈ। ਛੱਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। छत की हदूद हो गया, यही तो ਇਹ टेक्निकल ਛੱਤ बात ਹੈ है ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਹੈਗੀ, ਛੱਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਹੈਗੀ। नया अगर कोई कानून बन गया, लेकिन जो घर के किसी साइड में भी बैठ जाए ना वो वैलिड घर है। के अंदर घर के अंदर जहाँ भी बैठे मतलब अगर ये आपके इधर नीचे गेट पर भी उतर जाए आपके घर में वैलिड है यार, वैलिड है, क्योंकि हमारे घर के अंदर ही है। सही है। ठीक है कि नहीं? ये नहीं होता कि खाली छत होती है, चलो घर ये पूरा दिखाएं। वैलिड होता है। हाँ नहीं, एक नीचे वैसे भी बैठ टेक्निकल जाए। बात मैं इसलिए कर रहा था कि आपकी छत माशाल्लाह बड़ी ज्यादा, लेकिन जो पिंजरे थोड़े कंजेस्टेड हैं, थोड़े हैं, तो इस हिसाब से मैं बात अभी पूछ रहा था कि अगर उस छत पे बैठ गया, इधर बैठ गया, इधर नहीं, ये गया, तो तो ये तो कानून वैलिड अगर है। बन गया तो उसको हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारे उड़ाने वाले हमारे कबूतर थोड़ी होते हैं, ज्यादा नहीं होते। फुटाई जो हमारी है ना 100 के नीचे नीचे रहती है हमेशा। अच्छा लें जी, ये आया एक पहला कबूतर ही डिफरेंट मारा सीधा रख के हमारे सर पे आपके पास शानदार बाल चिट्टे हो गए हैं? कबूतर बाज में क्या, मैं कहा बाल ही चिट्टे हो गए। नहीं हकीकत है ना कि मतलब वो बिल्कुल एक ट्रेंडी कबूतरबाजी जो चल रही है हर जगह जाके, उससे डिफरेंट मेरे ये कहने का लहदा है, मकसद। हाँ, हमारे कबूतर ही लहदा है। क्या बात है। ये क्या किन में से है जी, क्या है इसको कोई बताएं इनके बारे में? सियालकोटी ये मेरे उस्ताद के पुराने कबूतर है, ये मैंने आगे बनाए हैं। आपके उस्ताद के कबूतरों में से, क्या बात है। अच्छा, तो लाहौर में सियालकोटी कबूतर, इसका मतलब है कि काम करता है, बशर्ते है कि आपने मेंटेन अच्छा किया, जैसे ये बाज ये इतनी बहुत अच्छा जी, क्या बात है। पर तो ये बेसिकली सियालकोटी कबूतर है, हाँ जी, मतलब ये आंख इसकी सियालकोटी आंख है। हाँ
हाँ जी, कलर भी वही है, जरा कलर भी दिखाएं। हाँ कलर में दिखाता हूँ। ये पंजे आप कह रहे थे? हाँ जी, ये पंजे। ये सुरख पंजे होने चाहिए। सुर्ख पंजे, ये देखें जी कबूतर, क्या बात है, ये बहुत ही खूबसूरत। अच्छा बेसिकली आप इनको सिर्फ सियालकोटी कहते हैं कि या कोई जैसे चूहे बटेरे ये इस तरह करके इनका भी? देखिए नाम नाम क्या आप जो रहेगा? मर्जी रख लें, आप नाम बेसिकली है तो सियालकुटी कबूतर, सही है, आगे हमने बनाए हैं वो अपने अपने नाम अपने, हमने हाँ, दिए अपने नाम जो मर्जी रख लें। हैं। बेसिकली ये सब क्या किसी काम पाया सही, और आप सही कह रहे थे कि जब आप आएंगे तो हैरान हो जाएंगे। मैं क्या है वाह वाह वाह, बहुत आला। ये जी उस्ताद मियां नदीम वकील वाले की छत पर मेंटेन हुए सियालकोटी कबूतर, अपने हिसाब से मेंटेन किए हुए। हाँ, जो दोस्त देख रहे हैं, उस्ताद कामरान जट साहब, अशफाक नजीर साहब भी देख रहे थे, उस्ताद नुमान भट्ट साहब सियालकोट सीड्स वाले। फिर नजर आएगा सारा कुछ असल जड़े ना कहाँ से बाबे बाबे दिखा दे इससे मेंटेन। बहुत आला। हाँ नाले ले ले आओ बाबे ले आओ। नहीं जी, एक बात इनमें, जो एक चीज मैं आपको बताऊं, अच्छा कुछ पुराने उस्तादों की बातें होती, कुछ बुजुर्गों की बातें जो है ना वो याद रखनी पड़ती हैं। हमारे एक थे मास्टर अली जान साहब, इंडिया से वो किसी वक्त में आए थे, फौत हो गए, बड़ी पुरानी बात है, खानेवाल सी था। वो कहा करते थे कि सियालकोटी कबूतर जो भी होगा ना, जो प्योर होगा, उसकी एक साइड का पर ना काला या स्लेटी जरूर आएगा, तो पूछा में लंगोड़ 9वां या 10वां। हाँ, वो कहते थे ये बात है। अभी ये मुझे नजर आ रहा है, तो ऐसे ही तो आपकी मेंटेनेंस से ये बात जाहिर है कि कबूतर के स्ट्रक्चर को आपने मेंटेन किया, नस्ल को खराब नहीं होने दिया। नहीं, उसको हमने खराब नहीं होने खराब नहीं होने दिया। ये बात आपने बीच में जो है ना पॉजिटिव आई, ये बड़ी पॉजिटिव बात है। दिया। अभी इसकी वो जो पूंछल जो मैं कहता था, हाँ एक पार होना चाहिए, हाँ, ये ऐसी है। ज्यादा शादी में ना ही पड़े। एक जो नई जनरेशन के लिए जो मैंने कहा था, ये पूंछल होनी चाहिए। एक पर की, क्या बात, माशाल्लाह, रंगीन कबूतर है जी। अच्छा माशाल्लाह, ये है, बहुत ही ये खूबसूरत। 20-20 साल हो गए ये बुत से रह गए हैं, इनकी उम्र 20-20 साल। ये मेरे उस्ताद के कबूतर हैं। ये दिखाए ना, असल भी दिखानी चाहिए। अच्छा ये बाबे बुब्बे जिनसे मैंने बनाए हैं। अब इनके पर वगैरह देख लें, मेंटेनेंस जो की है मियां साहब ने, तो ये देखें जरा। इन कबूतरों से बनाए। ये पापा नो लिखे हैं जो मैं कहता था, डॉक्टर कैप्टन, ये कबूतर उसमें से है। तो बहुत बड़ा कबूतर। इसकी उम्र 20 साल हो गई, ये बुत से रह गया हुआ, बस अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, पुराने शौक का कबूतर को निकालने का भी नहीं दिल करता बंदे का, है ना? नहीं मतलब पढ़े अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कई मर गए हैं, रिस्क अल्लाह ने जब तक इतने सारे लिखा। मर गए मेरे साथ, बुढ़े बाबे ना आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं। ये देखें जी, क्वालिटी देख लें पर की, कैसा पर है। बुढ़े की सफेद जो उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब एक बात करते हैं, वो कहते हैं पर के दरमियान में खला नहीं है, बस यही चंगा होता है, और केड़ा चंगा तुसी लभदे हो। सही कहते हैं, हाँ? सही कहते हैं। पॉइंट है, देखें हर एक जिन्होंने उम्र गुजारी हैं, उड़ाए हैं कबूतर, बनाए हैं। और आपके वाला पॉइंट, आप ये 20 साल का कबूतर बता रहे हैं, और मतलब वो जो आप कह रहे हैं रेशम, ये तो बड़ा मेन है ना, मेन। अब ये ना इसकी ये आंखें बेचारे बूढ़ा हो गया, ये इसकी एंड हो आप देखें पर भी दिखाए हैं, ये पर और पुराने पर हैं, और देखें अब जो हमने बनाया उसमें फर्क है। उसमें फर्क आ रहा है। हाँ वो तो उसके पर नजर आ रहे हैं ना, उसके चौड़े ऊपर से उंगल पर टाइप। हाँ जी, चौड़े चौड़े ये हैं जी वो बुजुर्ग कबूतर। आए बाबा यार इसकी कितनी उम्र होगी? 20 साल हो गई, ये भी तो सारे एक से से ज्यादा ज्यादा है। है। 20 से भी ज्यादा हो गई। ज्यादा है ये। अब ये ना, ये गुट से रह गई, ये इतना बूढ़ा हो चुका है, गुट से रह गया, ये इतना बूढ़ा हो गया। अच्छा, आपने मैक्सिमम टिप्पू भाई कितनी उम्र तक का कबूतर देखा? मैंने मैक्सिमम एंड वो भी ला जाए, कबूतर थे तकरीबन 25 साल की थे। 25 तक देखा। हाँ, ये 20 से भी ऊपर है इसकी उम्र। ये कहते थे ना वैशी चिट्टे, ये है, ये वाइट आर जो हमारे पास, ये वैशी कबूतर असल में। हाँ ये बिल्कुल वैसी है, इसकी चोंच बताती है।
اس میں سے میرے پاس خاکی بھی ہیں 25 سال تک دیکھا آپ نے 25 سال تک تقریباً بس 15 سال 12 سال 10 سال تو کبوتر کی عام ایج ہے کہ اس کو وائرس وغیرہ نہیں پڑتا تو وہ کبوتر مل جاتا مل جاتا ہے. یہ ہمارے پاس جو وائٹ ہے نا، وائٹ سلیٹی خاکی کبوتر، یہ اسی کی بریڈ ہے. سلیٹی جس کی ایک دفعہ ایک اشتہار میں تصویر دینے کے لیے آپ نے موبائل سے تصویر کھینچ کے بھیجی تھی ہاں ہے نا. انہوں میں سلیٹی بھی یہ نکالتے ہیں، وائٹ بھی نکالتے ہیں، اور ویسی کبوتر میں ایک داغ کالا کامران بھائی ذرا داغ. پیچھے کیجیے گا. اب یہ دیکھیں اس کا پنجہ، پنجے کی موٹائی دیکھ لیں. ہاں بڑا پنجہ نہیں ہے لیکن یہ بریڈر کبوتر ہیں. دیکھیں پرانے کبوتر جتنے بھی ہیں ان کے پنجے چھوٹے ہیں اور موٹی انگلیاں ان کی، تو ان کو آگے سے مینٹیننس کر کے تو آپ بریک کر رہے ہیں آپ جتنی مرضی. تو آپ وہ دیکھ لیں نا جو ان سے وہ سیڑ ہلے ہیں ان کا پنجہ دیکھ لیں. وہ ایک مثال ہے نا، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت عقل ہے. کی ضرورت. ہاں نقل تو ہر کوئی کر لیتا ہے، تو اس میں عقل ہوگی تو بنائے گا نا. بالکل ایسی. وہ عقل کیا ہے کہ آپ کو پورا معلومات ہونی چاہیے کبوتر کے بارے میں کہ اچھا ہے کتنا اچھا ہے یہ. اب یہ مینٹین ہوا ہے. ہاں جی، کیونکہ آج کل لوگ مینٹین زیادہ پسند کرتے ہیں کہ یہ بنا ہوا کبوتر ہے، یہ تیار کیا ہوا ہے. اچھا میں نے 57 ایئرس کا کبوتر دیکھا، 57 سال. دیکھا ہوگا بالکل 40 سال بڑا کا ہوا ہے. سندھ میں دیکھا، 40 کا تو ہم نے سندھ میں بھی دیکھا. اچھا ہوگا. ویڈیو بنائی. پاکستان ادھر ہمارے لاہور میں جو ہے نا وہ ڈائٹ کا اور ماحول کا فرق. ماحول کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. نہیں جی، فیصل حفیظ صاحب، تصور حسین صاحب، یہ کالا پر الیاس حسین صاحب. ہاں جی بالکل یہ آ رہا ہے لنگوٹ آ گئے. ہاں، اور یہ پر بڑی اچھی کوالٹی کا آ رہا ہے. یہ جو اس کے کلرز کی درمیان میں بھیڑ چال چلی ہوئی ہے نا، یہ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک اچھی نسل میں سے کبوتر ہے. مادی ہے نہ مادی جو بھی مطلب اچھے ان میں سے بلڈ لائن میں سے ہے. یہ بہت ہی اعلیٰ. یہ علی والے اپنے. دیکھیں جی کیسے کبوتر لگے اور پسند آ رہے ہیں آپ لوگوں کو، نظر آ رہا ہے بالکل بہترین. اچھا ٹیپو بھائی کو بہت سے لوگوں نے سلام کہا ہے. میاں صاحب کو بڑا زیڈ اے خان دا گریٹ خان، یہ لفظ آئے ہیں. یہ پیار ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنہوں نے سلام کیا اور میں ان کا شکر گزار ہوں اور ایک کہ وہ اتنی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. ایک کمنٹ آیا تھا جی، میاں ندیم تو کھریاں گلا پتہ نہیں یہ لاہور سے کسی بھائی نے کیا ہوگا. بات کھری ہونی چاہیے یار. سچی بات کرنی چاہیے یار ایک دن مر جائیں گے کوئی یاد تو کرے گا نا. بالکل. بات صاف کرنی چاہیے. بالکل صحیح بات. کتنے دن کی زندگی کسی کو پتا ہے؟ ایسے ہی ہے. تو کھری بات یہ جو نیو جنریشن جو اب آ رہی ہے، یہ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل حقیقت پہ مبنی. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کوئی ضروری نہیں کہ سیکھ کے اب ادھر سے بڑا کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے انسان کو، تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ہم تو بلا لوس ہیں، ہمارے پاس کوئی شاگرد نہیں بھی ہوتا نا تو جو پوچھتا ہے ہمیں بتا دیتے ہیں بلا لوس. نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے یہ، اور بڑا زبردست. یہ شوق کا یہ حسن چاہیے. بالکل ایسی. یہ ایک فن ہے، فن کو یار پھیلانا چاہیے، اس کو دبانا نہیں چاہیے. بے شک ایسی ہے. ہمارا تو یہ پیغام ہے، فن کو آپ جتنا پھیلائیں گے نا اتنا اچھا ہے. استاد ملک محمد بابر صاحب، میاں نذیر پارٹی، سلام کہہ رہے ہیں آپ دونوں کو. اسلام تو صاحب کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ گڈ پلیئرز، کہہ رہے ہیں میرا سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بابر صاحب گریٹ. اچھا یہ بہت ہی ڈفرنٹ اور بڑا اچھا کبوتر ہے 50 جی. سال پرانے یہ میرے استاد یہ ہیں. علی علی کبوتر اس کا بعد یہ پیچھے مرا ہے، یہ 22-23 سال کا ہو لیں گیا. جی یہ استاد میاں ندیم وکیلوں والے جو ہیں، یہ ان کے استاد کی طرف سے، مطلب اب تو ان کا ہے نا، تو یہ علی والے کبوتر ہیں، ان کے استاد کے ہاتھ کے جو ہے کبوتر ہے یہ. تو یہ جینون علی والا کبوتر ہے. ہاں جی، یہ جو استاد کی طرف سے آیا تھا یہ اس کا بیٹا ہے، وہ تو مر گیا. یہ پیچھے 22 سال کا مرا ہے کبوتر اچھا. علی والا نا. یہ میاں صاحب نے مینٹین کیا بس. لیکن یہ مطلب عموماً شباہت زیادہ تر یہ اپنے کبوتروں پہ دے رہا ہوگا نا کہ وہ کہہ رہے ہیں ایک ہاتھ ہی اگر صرف ہے تو پھر تو یہ بہت نزدیکی ہوگا علی والا. ہاں اس کو بھی 5-6 سال ہو گئے اب تو. علمدار حسین. اندر تالا ہی چابی لگی، 12 تالا لگ اچھا جی دکھاتا ہوں. توڑنا پڑنا. اندر والے لوگ نہیں جڑا سیف لوگ وہ چابی لگی رہی کیونکہ میں گیا سی کل بچوں کو بس ہو گئی. واہ واہ. کون سی یہ اس نے انڈے اتارے ہیں نا، میں بتایا نا تھا. یہ آگی ہوئی بات لس بھی اس کی وہ. ہے تو سیال کوٹی علی والے جو ہیں
हाँ दूसरे लाओ नहीं अफरोज भी दूसरे का। बहुत आला। लेकिन इसका अच्छा इसके फेस का इसका मोरा आपने देखा कि हाँ स्टाइल ही और ये चेहरा भी अच्छा है, ये मोरा भी, इसका हर चीज ये 7 नंबर किधर है बड़ी बहुत ही डिफरेंट है। 7 नंबर बड़ी क्या बात है जी, मोटे पंजे बिल्कुल परफेक्ट। ये इसका बेटा है आगे अली ये वाले आगे का? आगे बनाया मेंटेन। अच्छा ये बनाया हुआ, ये देखें जी, ये अली वाले ये जो दिखाया है भाई है ना बस कितने बाहर ये उसका बेटा। सर ये निशानी है सियालकोटी कबूतरों में इस तरह के पर आते हैं, बस ये बात हो हाँ रही है। जी जो सही सियालकोटी है ना हाँ इस ग्रे पर भी आते हैं इसमें। हाँ ग्रे पर भी आते हैं। उधर फैसल हफीज साहब सलाम दे रहे हैं जी जर्मनी से आपको, वालेकुम सलाम। बहुत ही आला पर माशाल्लाह। क्या बात है जी, पर की बनावट चढ़ाई। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कागज बिल्कुल वाह वाह। अच्छा एक ये 7 नंबर एक ब्रीड है मेरे पास। अच्छा ये डब वाले इसे डब वाले, हाँ डब वाले कबूतर इसका मैं वो दिखाता हूँ बाप भी। अच्छा ये आपने उसको फिर आगे आगे मेंटेन मैंने किया ना। वाह जी वाह। मेंटेनेंस तो बड़ी जरूरी है। बिल्कुल सही। अगर कोई कहता है कि मैंने पर डाला ही नहीं है तो ये तो झूठ है। अब जो हरे हैं उनमें चाहे स्लेटी डाल लें तो बच्चे तो आगे से स्लेटी निकालेंगे ना। अरे हाँ हरों में है तो। अच्छा जी। ये एक 7 नंबर ब्रीड है जी। ये बेसिकली डब वाले कबूतर है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये इनमें से है। इनमें से ये आलिना ये बड़ा कबूतर है। मैं पहले आपको ये दिखाती हूँ। नहीं, एंड चैनल दो में दिखाओ। यार क्या बात है, इसका परी कहाँ बगल कहाँ तो कहाँ जा रहा है पर पहला ये छाड़ दो। पहली कली ये है, पूरा एक पोटे का फर्क डाल रही है। गुड्डू बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माशाल्लाह माशाल्लाह वाह वाह। अच्छा ये माँ थी अब ये बेटी है? नहीं ये बहन है इसकी। अच्छा ये इसकी बहन है। ये 3 पट्टियां बनी है ना। लिसी हुई भी है, बाकी सही कह रहे थे। हाँ लिसी हुई भी है। बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया जी असद जैदी साहब। अच्छा ये दिखा दी ये भी उसी डब वाले की। इसको मेडिसिन लेके छोड़ो। किसको स्मेल लगती गोली दे इसलिए तो स्मेल लगती। एक बार वॉश कर ली फिर। हाँ एक दफा पलटा के यार फिर 25 पा देने तेज बड़ी ध्यान ना निकले ना। वाह भाई ये भी इनमें से। हाँ ये डब वाले वाह ये भी ये बूढ़ा बाबा हो गया। ये 18-20 साल से है मेरे पास ये। अच्छा ये मैं इनका क्रॉस करता हूँ इस पर। ये दूसरी बहन निकाल है। बेटियां हाँ सच बेटी नहीं मैं किसकी बहन थी, इसकी बेटी है। तो जो पहली वादी आई थी उसकी बेटी है ना? ये माँ है साथ। हाँ यही दिखाई है ना पहले। ये माँ और ये नर है। ये आली नाल ये है मेन कबूतर जिससे ये डब वाले आप कह रहे हैं कि चल रहे हैं। इनको मैं क्रॉस करता हूँ जौंसलों में। ये बूढ़ा हो गया, ये इसके एंड हो गया इसका। तो अभी भी चल रहा है ये देर? नहीं ये बूत नहीं डालता। ये 18-19 साल हो गए इसको। उस्ताद साकिब बाबा साहब वालेकुम अस्सलाम, सबको सलाम कह रहे हैं जी उस्ताद साकिब। वालेकुम सलाम जी बाबा जी।
भाई बड़े प्यारे बंदे हैं जी माशाल्लाह। हाँ, है मुलाकात? सदरेला बाबा नहीं साकिब बाबा साहब कराची से। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ 79 79 वाले ये वो है बाबा जी, चाचा बिल्कुल 79 वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये है जी वो मेन कबूतर। अच्छा, पुराने कबूतर संभाल के रखे हुए हैं जो आपके, वो जिनसे जितने मर गए यार, जिनसे जो आगे मैंने बनाए हैं ना सारे, हाँ वो तो काफी बनाए, आपको चंद दिखाए आपको। हाँ हाँ तो उनमें से ये है कि चलो टाइम फिर शॉर्ट ही होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी थोड़ा लूज लग रहा है। नहीं ये तो बुढ़ा बाबा उठे छाड़ गए एनजी अंदर। ये आया कबूतर कमाल। ये मेरे पास जेड में उड़ा भी हुआ है उसी नस्ल में से। ये बना हुआ है हाँ जो मुझे पसंद आ गया है। ये बना हुआ है, जो बात इसने की थी ना, ये बना हुआ है। और ये उड़ा हुआ है जेड में। ये बड़े बड़े सही कह रहे हैं, ये हकीकत है। वो असल बात है, इसने आपको बता दी है। यही तो अवेयरनेस आई है। हाँ। पसंद आते हैं। अब ये ब्रीडिंग में आप ये मैंने डाल दिए क्योंकि ये अटैक में आ गया था, तो फिर अब ये सेट हो गया वैसे लकवा इसका। अच्छा, एक और कमगर कबूतर हम जिस वक्त देख रहे थे वो फिर रहा था, वो जिसका थोड़ा सर ग्रेस है, बाकी गहरा कबूतर है जालदार से। हाँ वो है अंदर, हाँ वो बड़ा अच्छा कबूतर। बनाए हुए ना वो भी। देखिएगा जरा, एक कबूतर है लाल आंखों का, किस तरह का? इतना सर उसका फीका है, गोल्डन ग्रेस है, गोल्डन कबूतर है, गोल्डन व्हाइट नो छापा तो नहीं है ना? नहीं मामूली सा है बल्कि, पर उसके काले ही है। अच्छा जालदार सा। हाँ जालदार सा। और फिर एक वो जिसको आप किरला कह रहे थे वो कबूतर नहीं आया अभी तक। नहीं एक और था, नहीं एक तो ये कर लेना, एक कलसरा सा कबूतर भी फिर रहा है ऐसा, फिर वो फीका है थोड़ा, टेडी टाइप। हाँ ले जी, ये मेन फिरोजपुरी कबूतर है, असल जेनवन कबूतर है फिरोजपुरी। वजूद का स्ट्रक्चर देख, क्या बात। हाथ में आती है, आपने क्या कहा यार, ये कबूतर, ये चीज होनी चाहिए कबूतर में। ये आपकी जो ये पंजे है ना, एक मिनट जरा उधर से, ये आपके पोटे ने जो से ये चीज है ना, ये आपको बताएगी इसका वजूद का स्ट्रक्चर क्या है। हाँ ये नहीं है कि आपने हाथ में पाया कि पोला जिस्म है, ये पोले जिस्म वाले नहीं ज्यादा ठहरते, बिल्कुल सही। हार्ड होना चाहिए वजूद। ये नहीं है कि उड़ता है ये हार्ड है, जो उड़ते हैं ना उसका भी पोला होता है, हाँ ठीक है। जिसका हार्ड है ना वही इसका करना हार्ड है। ही है, हाँ। इसका देखो सीने की, देखो सीना कितना चौड़ा, पीछे देख लो बंद। बिल्कुल। ये भी देखो, ये वाला, चाहे वो भी दिखा देंगे। ये है जी मेन फिरोजपुरी कबूतर हैं जी, और ये पुराने फिरोजपुरी कबूतर हैं इनके। ये तकरीबन 40 साल पुराने हैं ये। किरला कहते हैं इनको। ये इनके घर की मशहूर और मारूफ किरला ब्रीड है। किरले जो मतलब बस वो जैसे ऐसी थी। बड़ी बड़ी छिपकलियां आप कह लें, उस तरह की, उसको कहते हैं किरला। नहीं मतलब बता रहा हूँ ना कि किस वजह से वो चीज, उसके नाम पे उन्होंने इसको किरला कहा है। ये लाहौर में उस्ताद मियां नदीम वकीलों वाली छत से हम लाइव आपके साथ हैं। उस्ताद ज़ेड खान साहब और उस्ताद मियां नवीद वकीलों वाले ये हमारे साथ इस वक्त शौक करवा रहे हैं, और बड़े ही शानदार कबूतर। सबसे पहले हमारी बातचीत हुई है, बड़ी अच्छी बातचीत हुई है, बड़े टॉपिक डिस्कस हुए हैं, बहुत शानदार बातें की हैं उस्ताद ज़ेड खान साहब ने, उस्ताद मियां नदीम वकीलों वाले इन्होंने, उस्ताद मियां नवीद साहब ने, और इस वक्त हम इन्हीं की छत पे मौजूद हैं। और आपको बताते चलें कि उस्ताद ज़ेड खान साहब जो हैं वो अब इसी छत से शौक करेंगे। क्या बात। ये उड़ा भी हुआ यहाँ। बनाए हुए हैं बाहर के जो कबूतर है ना असल। ये उल्टी में जो हम करीब हैं, आगे दो हाथ भी आगे काम कर सकते हैं। नहीं जी, पर देखें है वो जो फिरोजपुरी कबूतर है ना किरला, किरलों का इनमें बड़ा काम हुआ है। क्रॉस डाल हाँ, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इसका, छोटा सा कबूतर है। ये बनाया, ये उड़ा हुआ है ना। ये भी किरला, ये किरला ब्रीड मादी प्योर है। हाँ, ये प्योर है। तो मतलब जो असली हालत में आपके पास आए थे मेरे, ये प्योर है। अच्छा वो प्योर है, ये बनी हुई है। हाँ, ये इसकी आगे बेटी है। वाह वाह।
आशिकी वाले पर हैं। पंजे देखो, हाँ कैसे पंजे, वो दाना खाया उन्होंने, वो पानी निकलता। ये इनकी माँ है सर। ये इनकी माँ है, हाँ जी, बड़ी नशीली आंखें हैं। ये है ही ऐसी मशीन। अच्छा ये फिरोजपुरी मेंटेन हुए हैं, फिरोजपुरी ये जो मैं आपको बता रहा था सारी छत लेके आए, ये एक जो बच्चा था ये बच्चा था। जो सारे मरने के बाद जो एक बच गया था, हाँ आप जी, बता रहे थे। दाना नहीं खाया उन्होंने, जब मैं लेके आया ना पूरी छत लेके। ये दिखाओ जी नुमान से, ये है जिसे मैंने आगे बनाया है सारे किले। जिसकी नोक बड़ी डिफरेंट है, चेंज है सबसे। ये सर ये मोइज इशफाक साहब हमारे साथ होंगे, पुराने देखिए मोइज फिरोजपुरी भाई। ये कबूतर। हाँ हाँ वसीम भाई, ये देखें जरा पुराने फिरोजपुरी कबूतर, माशाल्लाह क्या बात है। हम भी इंज लग रहा है चौधरी गुस्से च नहीं होता, चौधरी गुस्से में नहीं होता तो ऐसी शक्ल होती है। बेटी है, बच्चे पाल रही है। बिल्कुल सही। ये मतलब आपका किसी के ऊपर वो नहीं है कि उनकी ब्रीड उनकी, ये आप यानी कि आपके अपने ही कबूतर, कर करना खरीदे भी हैं, मलाए भी हैं, बनाए भी हैं। लेकिन ये अब ये हम कुछ पुराने लोगों को नहीं वक्तों ना की बताते आपके कि पास। हमने कहा से, हम बता रहे हैं कि हमने बनाए हैं भाई। हम्म, तो बना के कबूतर उड़ते हैं, ऐसे नहीं उड़ते बिल्कुल सही, कि आप कहते हैं एक ही नस्ल है मेरे पास, इससे मैंने उड़ा ली है, ये गलत बात है। बिल्कुल सही, कबूतर बनाने पड़ते हैं, बिल्कुल दोस्तों से भी लाने पड़ते हैं, खरीदे भी हैं हमने। कुछ मेरे उस्तादों के मेरे पास थे, मुझे मिल गए, कुछ उस्तादों से मिल गए, वो प्योरिटी में थे, उनमें क्रास डालते गए बड़ा। अभी आपको पुराने बूढ़े कबूतर दिखाए नहीं मैंने, ये जो आपका बहादुर हुआ था वो किन में से, किरलों में से था, है जो बहादुर का नाम उठाया था जिसने, वो यही नस्ल है ना अपनी किरलों में से। किरलों में से। हाँ, 7:30 बजे बैठा था। 7:30 बजे। 7:30 के बाद भी बैठते रहे हैं। तो पूरे लोग हैं, बहादुर के नाम मेरा है, कम से कम मैंने 15 एक नाम, वो सारे कप आपको भी अंदर दिखाते हैं। हाँ हाँ तो वो इनामात जीते हैं हमने। बिल्कुल सही, तो भाई आप भाइयों की दुआओं की वजह से, लेकिन ये सारे घर के ही हैं माशाल्लाह। बिल्कुल। तो इस दफा भी आपका जो शौक भरपूर तरीके से करने का इरादा है, इस दफा भी माशाल्लाह हाँ भरपूर जी, शौक इंशाल्लाह होगा, बशर्तिया जिंदगी। बशर्ते जिंदगी। अभी हम मिल के करेंगे शौक इंशाल्लाह, हाँ बिल्कुल, और सब भाइयों को अच्छा शौक देखने को मिलेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद ज़ैड खान साहब, उस्ताद मियां नदीम साहब और उस्ताद मियां नवीद साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन, तो ये है वो खिलाड़ी, वो प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर हैं लाहौर के, लाहौर की जान है, लाहौर की पहचान है ये लोग, लाहौर का असासा है ये लोग, और ये शौक कर रहे हैं इस वक्त लाहौर में, अपना दिलो जान लगा के, अपना टाइम लगा के, अपना टाइम जो है सर्व कर रहे हैं इसमें। और उसके साथ साथ इनको कोई भी कट हो लाहौर में, कहीं पे भी जाना हो तो हमें ये ज़रूर नज़र आते हैं, अपना टाइम वहाँ पे देते हैं, लोगों के साथ मेल मिलाप, हर चीज़ में ये मुकम्मल तौर पे कबूतरबाजी में मुकम्मल तरीके से इन है, अपने सोशली भी और प्रैक्टिकली भी। तो ये आपको इस वक्त इन भाइयों की छत आपको जो है हम दिखा रहे थे, और इस छत से अब उस्ताद मियां नदीम वकीलों वाले और उस्ताद ज़ैड खान सब मिलकर शौक करेंगे। उस्ताद ज़ैड खान छत उस्ताद मियां नदीम वकीलों वाली के नाम से, और मियां नवीद साहब तो ऑब्वियसली यहाँ पे साथ ही होंगे। तो बड़ा ही शानदार शौक हुआ, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में उस्ताद मियां नदीम साहब वकीलों वाले और उस्ताद ज़ैड खान साहब और उस्ताद मियां नवीद साहब, इनके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। लेकिन साथ साथ में आपको कहता हूँ नुमान आपको अंदर लेके जाएगा और इनके जरा जो टूर्नामेंट्स में जीते हुए कप है वो भी आपको दिखाएगा। हमें यहाँ से दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। ऐसे ही अंदर जाके कपों में और ये लोकेशन दिखाता हुआ ले जा, एक छत की बना दे।
ओके जी, अल्लाह हाफिज।